and I showed you a sample report and we discussed the detail of that and the parts of that report as well. So we are supposed to be taking that into consideration again and some more examples. But before that, I would like you to know something about the reports. For instance, on the very first slides, you see that there are certain reports been presented, some graphical presentations, some data is shown with the help of some graph and charts. So you can get an idea that writing a report is not an easy task, as well as it's a great responsibility. People who are writing report, definitely they are helping the seniors making decisions. They are also helping the juniors to complete their task and a kind of guidance for them as well. And when you keep these business reports as a record, that's going to be the previous record you have. So people who come afterward, like the junior ones or the newcomers in the firm, in the company, they also get benefit from the previous reports, and they get an idea that what happened last year or the previous some years, so they can compare the progress of the company and the work they do. So this is going to be the report. Over here you see, this is given a definition because I would show you few reports. The objective is that I would tell you how to write a report. So this slide is telling you a business report is an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons for a specific business purpose. So if your boss has asked you to write a report, your report should be impartial. Impartial mean neutral. Objective mean it is not subjective at all. You are not including your feelings, your liking, your favors, but it is highly like objective, and you can say it's a kind of neutral report. And again, you can say impartial. And it is planned because you already do it deliberately, like you research the material, data ikatha kiya, then you write it down and you just give your facts and figures to the person who is like requiring this type of statistics. फिर नीचे वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है बिजनेस रिपोर्ट्स प्रेजेंट आइडियाज एंड फैक्ट्स टू डिसीजन मेकर्स. जिन लोगों ने आपके रिपोर्ट्स को पढ़कर कोई डिसीजन लेने होते हैं तो इसकी बेस के ऊपर आपके डिसीजन लिए जाते हैं. एक ये बात आपको यानी बतानी थी. फिर उसके बाद एक और चीज जो नेक्स्ट स्लाइड पे है वो ये है कि बिजनेस रिपोर्ट जो है वो असल में व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट, या वो भी अभी हम देखते हैं. लेकिन बिजनेस रिपोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स इन बिजनेस, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स often base policy decisions on reports. For every long report, countless short reports are presented to help business people make informed decisions on matters as diverse as the most comfortable officer to buy or the best employee to hire for the management career. अब इस पूरी बात का मतलब क्या है? इस पूरी बात का मतलब है कि एक छोटा डिसीजन आपने लेना है. मिसाल के तौर पर आपने कंफर्टेबल चेयर खरीदनी है, तो somebody has asked you to survey the market और आपने एक कुर्सी लेके आनी है जो कि कंफर्टेबल हो, लाइक फॉर अ पर्सन हु इज सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स कंप्यूटर के आगे बैठता है, तो उसको एक चेयर चाहिए. मे बी चेयर आपको आप 80,000 से लेकर आपको 40,000 तक कॉस्ट पड़ती है फॉर इंस्टेंस, लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो आप सर्वे करके आते हैं, यू रिपोर्ट योर इमीडिएट बॉस, उसको बताते हैं कि द चेयर इज अवेलेबल. और ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है. फॉर इंस्टेंस आपने कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए कुछ एम्प्लॉयज आपने जो है वो आपने सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी आपने एक रिपोर्ट लिखी. या आपने कोई आउटलेट नया खोलना है, या आपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आपने नया प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना है, कुछ भी आपने करना है, तो यू आर सपोज टू बी राइटिंग डाउन रिपोर्ट. और एक बात और इसमें लिखी है कि इट्स गोइंग टू बी मैनी पीपल आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा. वो अपनी अपनी छोटी छोटी रिपोर्ट्स जो है वो इकट्ठी करके आपको मटेरियल देते हैं और उसकी बेस के ऊपर शायद एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है वो कंपाइल कर ली जाती है. ऐसा भी होता है. उसके बाद ये सिर्फ आपको आइडिया दिया जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखी हुई है रिपोर्ट की, जो आपको नोट्स की शक्ल में यू विल गेट इट. Reports are very important part of company's communication network. Directed chiefly upward, they serve as a permanent record of
परफॉर्मेंस इन एवरी स्फेयर में, हर दायरे में, हर सर्कल में ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, कि आपकी एक रिपोर्ट जो है वो आप बनाते हो और आप प्रेजेंट करते हो। यूजली रिपोर्ट जो है डेफिनेटली अपवर्ड जाती है, यानी जूनियर्स काम करते हैं और सीनियर्स को देते हैं। They also help management see how previous decisions are working and provide the basis for the new decision. आपके पुराने डिसीजन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, whether the policies that been implemented after some decisions आप चेक करके आते हो और आप रिपोर्ट करते हो कि जी वो काम कर रही थी कि नहीं। As the decision making process becomes more rational का मतलब है अकल पे बेस करता है, business reports grow in number and sophistication. ना सिर्फ वो तादाद में बड़ी होती है, बल्कि sophistication का मतलब होता है कि they are very versatile, they are very based on other people experience, और उसके अंदर बहुत ही यानी expertise होती है। तो आपकी रिपोर्ट जो है वो इसकी बेस पर होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें जो है आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, आपको जब कोई एमसीक्यूज आएंगे तो वो इस तरह की बातों का नॉलेज आपको चाहिए। लेकिन आपको बेसिकली अभी मैं आपको समझा दूंगी कि रिपोर्ट पर जब आपको सवाल आएंगे तो आपकी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, उनकी डेफिनेशन, ये मैं एमसीक्यूज की बात कर रही हूँ। और अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिसेंटली आई हैव चेक्ड विद द स्टूडेंट्स हु टुक एग्जाम, अभी जो एग्जाम दिया है रिसेंटली उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया है कि आपको 20 नंबर के जो सवाल आते हैं रिटर्न, उसमें एक आपने लेटर लिखना था और एक आपने रिपोर्ट लिखनी थी। आई बिलीव कि आपको लेटर लिखना बहुत अच्छा आ गया है। आई हैव गिवन लॉट मेनी थिंग्स टू यू फॉर प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। तो अब हमें रिपोर्ट के ऊपर अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग करना है। तो ये कुछ चीजें मैं आपको समझाते जा रही हूँ, फिर मैं इसको रिवाइज भी करूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आप देखेंगे कि इट इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड इट। बिकॉज देखो, आप लोग को, मुझे अगर चीजों का सब पता है बट यू आर लिसनिंग टू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए आपको मुझे तैयार करना है। अब एक चीज आप सीखोगे, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, जो ये सारी बात जो मैं कर रही हूँ ये ज्यादातर एमसीक्यूज बेस्ड है। और अगर कोई सवाल आपको आता है तो मैं भी आपको समझा देती हूँ कि सवाल किस तरह का आएगा और आपने कैसे उसका आपने रिस्पॉन्स देना है। इसके लिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि यू आर सपोज टू वर्क ऑन योर टाइपिंग स्किल्स, अपनी ठीक करो, अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाओ, और आप देखो कि किस तरह से पेज पर आप काम करोगे। यू कैन टॉक टू मैनेजमेंट, यू कैन टॉक टू सीनियर्स एंड दे कैन गाइड यू कि जी हमें जब सवाल आएगा तो हम किस तरह उसको करेंगे, कैसे अपलोड वहां पे करेंगे, या क्या तरीका होगा। या मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई ट्यूटोरियल पड़ा हो, वो भी चेक कर लो। नहीं है तो टॉक टू सम मैनेजमेंट पीपल, दे विल गाइड यू ऑन दैट। तो अब आपको मैं बताना चाह रही हूँ जो बेसिक चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है। एक ये है कि लोग कहते हैं कुछ रिपोर्ट्स लॉन्ग होती हैं, जैसे मैं कल इंशाल्लाह आपको लॉन्ग रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी। उसे लोग एज अ बिजनेस प्लान भी कहते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिटेल्ड रिपोर्ट है। और एक रिपोर्ट शॉर्ट होती है। आप लॉन्ग और शॉर्ट क्यों कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, यानी एक रिपोर्ट का वॉल्यूम क्या है, कितनी बड़ी है, कितने पेजेस की है, या उनकी कोई जैसे कि आप कहते हैं ना कि डिफरेंट बाइंडिंग्स होती हैं, कि एक उसकी जिल्द है, फिर 2 जिल्दें हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा जिल्दों में आती हैं, जैसे किताबें आती हैं, तफसीर की किताबें आती हैं। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही लॉन्ग होती हैं और उनकी बहुत ज्यादा, आप कह लें कि डिटेल्ड उन पे आपको काम करना होता है। तो लॉन्ग रिपोर्ट का मैं कल आपको सारा बताऊंगी। शॉर्ट रिपोर्ट जो है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर, और समटाइम्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मेमो। अब मैं आपको इसके बारे में, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में शॉर्ट रिपोर्ट आएगी, आपने लेटर फॉर्मेट में लिखनी है या मेमोरेंडम फॉर्मेट में लिखनी है। ये बात आपको मैं कह रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑन टू इट सो दैट यू राइट दैट रिपोर्ट। और क्या लिखा होगा तो तुम क्या करोगे, ये मैं आपको समझाती हूँ। इसके बाद दूसरी चीज आपको समझनी है, अदर फॉर्म इज फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल। अब ये क्या होता है? फॉर्मल रिपोर्ट बिल्कुल ही आप जैसे कहते हैं कि जी somebody is dressed up formally, कि उसने पूरा ड्रेस पहना हुआ है, उसने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है। और एक इनफॉर्मल ड्रेस में आ जाता है बंदा जिसने कि सिंपल टी शर्ट पहनी है और जीन्स पहनी है। इस तरह खवातीन, जो पाकिस्तानी खवातीन है, उनका इतना ज्यादा मसला नहीं है फॉर्मल इनफॉर्मल का। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिस। मैं शादी ब्याह की बात नहीं करी। शादियों पे तो फॉर्मल इनफॉर्मल आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि खवातीन क्या पहनती हैं, और जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, सेम इज द केस विद बॉयज और मेन, वो क्या पहनते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप जिस तरह एक ड्रेसअप होते हो,
बिल्कुल ऐसे ही आपकी एक रिपोर्ट दैट्स फॉर्मल, इट इज फॉर्मली प्रेजेंटेड इन अ वे कि जिस तरह अगर आपने अपने घर में किसी को या अपने किसी जानने वालों में से किसी को देखा हो कि वो लोग एक थीसिस पे काम करते हैं, ठीक है, एक थीसिस होते हैं जैसे कि एमफिल के लिए, मास्टर्स के लिए आप बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक बहुत, आप समझ लें कि काफी पेजेस की एक रिपोर्ट है जिसका बकायदा आप टाइटल पेज बनाते हो, ठीक है, एक असाइनमेंट की तरह, उसके अंदर आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट दोगे तो वो एक बड़ी ही फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट होगी। इस पर हमने चूंकि कल बात करनी है इसलिए मैं इस वक्त आपको डिटेल नहीं बता रही। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया सो दैट यू रिमेंबर इट एंड व्हेन आई टीच यू टुमारो तो आपकी मेमोरी में ये चीज हो। इनफॉर्मल रिपोर्ट होगी जो कि आपने, फॉर इंस्टेंस, एक जगह है वेयर यू आर गोइंग टू राइट डाउन कि हाउ मेनी पीपल विजिटेड, विजिटर कितने आए, कितनी इंक्वायरीज हुई हैं, आपने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के भेज दी। आई मीन, डू यू थिंक इट्स अ फॉर्मल रिपोर्ट? नो, इट्स जस्ट अ इनफॉर्मल रिपोर्ट एंड यू आर नॉट सपोज टू वर्क ऑन इट्स लाइक बड़ी इसकी फॉर्मेलिटी होगी, इसके बड़े पार्ट्स बनाओगे, इसकी कैसे प्रेजेंटेशन करोगे, ऐसा नहीं होता। तो इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो यूजुअली, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉन्ग रिपोर्ट्स आर फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड शॉर्ट रिपोर्ट्स आर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, आप ये बात याद रखिएगा। और जब आपके पास स्पेशली आपके पास जो है एमसीक्यूज हैं उसमें चैप्टर 8 आपको मिलेगा 1000 BC वाले में भी, और आपके पास जो आईकेप की बुक है यानी सीए की बुक है उसकी भी चैप्टर 8 के एंड में आपको इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, आप वो जरूर करेंगे। आप वो नहीं करेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगी कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे। वैसे भी उसको कर लेने से आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये इसके अंदर क्या है और क्या आपको याद रखना है। इसके बाद एक और तरह की रिपोर्ट है जिसका जिक्र, ये सारा कुछ मैं जो है मेन चीजें आपको बता रही हूँ। एक रिपोर्ट होती है वॉलंटरी। वॉलंटरी ऐसी रिपोर्ट होती है विच इज ऑपोजिट टू ऑथोराइज्ड रिपोर्ट। अब ये दोनों में क्या फर्क है? बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। ऑथोराइज्ड रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें somebody, the senior person or some authority has asked you or directed you to write a report, आपको रिपोर्ट लिखने को उन्होंने कहा, ऐसी रिपोर्ट को हम ऑथोराइज्ड रिपोर्ट कहते हैं। और ये भी मैं आपको कल इसके बारे में डिटेल बताऊंगी कि ऑथोराइज्ड रिपोर्ट जो है बकायदा एक लेटर आपको लिखा जाता है कि यू राइट डाउन द रिपोर्ट और इसका बजट इतना होगा, इतना टाइम आपका फ्रेम है, इसमें ये चीजें तुम करके दोगे। तो वो एक ऑथोराइज रिपोर्ट होती है और उसमें बकायदा एक बजट होता है जिसके अंदर आपने काम करना है, लाइक यू विजिट अ प्लेस, यू स्टे समवेयर, आपको किसी शहर रुकना पड़ जाता है या आपकी टीम को, तो ऑब्वियसली आपकी फंडिंग होती है, तो आप उसके लिए पूरा आपको लेटर एक लिखा जाता है। वो मैं आपको कल सारा इसके बारे में बताऊंगी। तो वॉलंटरी रिपोर्ट क्या होती है? इसके ऑपोजिट वो होती है जो आप अपनी मर्जी से लिखते हैं, ठीक है। नोबडी हैज आस्क्ड यू टू राइट अ रिपोर्ट। अब एक बात याद रखिएगा, एक और टर्म मैं आपको सिखा रही हूँ, चाहे वो रिपोर्ट है, चाहे वो कोई लेटर है, या वो कोई प्रपोजल होगा, बिजनेस प्रपोजल होगा, जो कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल मेरा टॉपिक स्टार्ट हो गया बिजनेस प्रपोजल का तो मैं कल करा दूंगी आपको, अदरवाइज डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह, वेडनेसडे को है वो हम खत्म कर लेंगे इसको। तो और इसके अलावा अगर मेरे पास टाइम बच जाता है तो मेरे प्लान में है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मीटिंग के बारे में भी बता दूंगी कि मीटिंग के बारे में सवाल क्या आते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगी ताकि आपके जहन में रहें, क्योंकि आपके बड़े मेन मेन ये टॉपिक्स हैं जिसमें से सवाल आपको जरूर आते हैं। तो आपके पास जो वॉलंटरी रिपोर्ट है जिसको हम ये कहते हैं कि somebody is writing on his own initiative, इसे कहते हैं सेल्फ इनिशिएटेड रिपोर्ट, यानी आपने खुद लिखी, आपको किसी ने नहीं कहा। और ऑथोराइज रिपोर्ट होती है वो इनिशिएटेड बाय सम अथॉरिटी होती है, किसी ने आपको इनिशिएट किया, आपको स्टार्ट किया कि आप करें। और वो चीज जिसको इनिशिएटेड होती है, ऐसी चीज को हम सोलिसिटेड भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको लिख के ये दिखा दूंगी टर्म, सोलिसिटेड कहते हैं ऐसी चीज, ऐसा खत, ऐसा प्रपोजल जो किसी ने आपको कहा करने को। और अगर आप खुद से करते हैं तो उसको अनसोलिसिटेड कहते हैं, ठीक है। SOLICITED, सोलिसिटेड जो आपको कहा गया, अनसोलिसिटेड जो आपको नहीं कहा गया। मिसाल के तौर पर आपने कहीं अपना सीवी भेजा है, क्यों भेजा है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आई थी कि जी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करो, तो आपने अप्लाई कर दिया। तो ये जो आपका सीवी जाएगा, इस सीवी को हम सोलिसिटेड कहेंगे। लेकिन एक वो सीवी जो आपने किसी कंपनी में ड्रॉप कर दिया, मेल कर दिया और कहा कि जब भी वैकेंसी होगी प्लीज मुझे आप कंसिडर कर लीजिएगा, तो दिस इज कॉल्ड अनसोलिसिटेड सीवी।
ठीक है, ये टर्म कहीं लिख लो, ये आपको पेपर में सवाल पूछा जा सकता है किसी भी चीज के बारे में. एनीथिंग दैट यू राइट इन रिस्पॉन्स टू समथिंग यू कॉल इट सोलिसिटेड, इट इज इनवाइटेड एक्चुअली. व्हेन यू राइट विदाउट इनविटेशन, जैसे आपके घर में आप अखबार किस वाला आता है तो साथ एक एड फेंक देता है, ट्यूशन सेंटर है आप खुल गया है, वर्कशॉप खुल गई है, या आपके घर के पास एक ग्रोसरी स्टोर खुल गया है, वो आपको क्या करते हैं, दे आर जस्ट गिविंग यू, डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं. डिड यू आस्क फॉर दैट एड? क्या आपने मंगवाई थी? नहीं. आपके गेट के अंदर गिरी हुई है, ये तो पड़ी हुई है, ट्यूशन सेंटर की पड़ी हुई है. तो दिस इज अनऑथराइज्ड होती है, और इसको हम कहते हैं ये अनसोलिसिटेड होती है, अनडिमांडेड होती है. तो कुछ रिपोर्ट्स वॉलंटरी. अब आप कहेंगे कौन पागल है जो इतनी बड़ी बड़ी वॉलंटरी रिपोर्ट्स लिखने बैठ जाता है. अक्सर ऐसा होता है कि पीपल फॉर देयर करियर ग्रोथ, वो अपने करियर ग्रोथ के लिए किसी बात के ऊपर रिसर्च करते हैं और वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर देते हैं. दूसरा, आपके पास क्या होता है कि आपने एक रिपोर्ट जो है बनाई, आपका आजकल का जो रवाज हो गया है ब्लॉग्स, आपने सुना है, आपके अपने पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, आप एक रिसर्च करते हो, अपनी ब्लॉग के ऊपर फेंक देते हो, आपकी वैसे इनकम आना शुरू हो जाती है ऑनलाइन. और तीसरा तरीका ये होता है कि सम पीपल हु मेक रिसर्च, लाइक फॉर इंस्टेंस कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने किसी टॉपिक पे रिसर्च की है, कहीं डेटा इकट्ठा किया, लोगों से पता किया, कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, और इसके अलावा कोई साइंटिस्ट है, उसने उस पर काम किया है, तो वो अपनी रिसर्च, जैसे आजकल आप देखिए कितने लोग हैं जो अपनी रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, वो अपना काम करते हैं. ऑक्सफोर्ड के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, डिफरेंट जगहों के कंट्रीज के, दे आर प्रेजेंटिंग कि जी हम काम कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन वैक्सीन. तो हु इज आस्किंग देम टू डू? कोई भी नहीं. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग वॉलंटरली, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो कितनी अर्निंग उनकी होगी. और सेकेंडली ये भी होता है कि बाहर की जो कंट्रीज हैं उनका पास बहुत ज्यादा बजट है, बहुत फंडिंग है, तो इसलिए वो बहुत सारे लोग वहां पे काम जो करे होते हैं, उनको इतना ज्यादा फंड्स दिए जाते हैं कि दे वर्क ऑन इट, और उनकी इसीलिए तो इतनी प्रोग्रेस है वहां पे, इतनी रिसर्च है. ठीक है, इसीलिए तो आपको सारी जो किताबें मिलती हैं अंग्रेजी में, बिकॉज पीपल दे आर वर्किंग ऑन दैट. आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारी किताबें जो है, डू यू थिंक पीपल आर वर्किंग हियर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर कहीं या श्रीलंका के अंदर कितना काम कर रहे हैं? दे आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज द रीजन इज दैट इट रिक्वायर्स मनी, इट रिक्वायर्स फंडिंग. आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, एंड यू कांट डू दैट विदाउट दैट. तो ये आपकी वॉलंटरी रिपोर्ट्स बहुत कम आपको यहाँ मिलेगी, आपको बाहर के कंट्रीज में ऐसी रिपोर्ट ज्यादा मिलेगी. फिर एक रिपोर्ट आ गई जो आपको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए, इस पर आपको लाजमी सवाल आता है. एक रिपोर्ट होती है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट. इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का मतलब है कि इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन बट नो रिकमेंडेशन, नो सजेशन, नो ओपिनियन. आपको अगर एग्जामिनर कैटेगोरिकली कह देता है राइट एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट या इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, तो आप समझ लें कि मैंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन नहीं डालनी. और अगर वो कहता है राइट एन एनालिटिकल रिपोर्ट, तो ये कैसी रिपोर्ट है? दैट कंटेन्स रिकमेंडेशंस. आपको याद होगा पिछली दफा मैंने आपको जो एक स्पेसिमन दिखाया था, एक सैंपल दिखाया था, जो आपको मिल जाएगा, और उसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि उसमें रिकमेंडेशंस आपने दी हैं बिकॉज दे आर एनालिटिकल रिपोर्ट्स. अब आपको सवाल ये पड़ता है कि अगर एग्जामिनर ऐसा सिनेरियो दे जिसके अंदर नहीं पता चल रहा कि उसने इंफॉर्मेशनल कहा, एनालिटिकल कहा, तो सिनेरियो को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि ये रिकमेंडेशन मांगती है कि नहीं मांगती. अगर रिकमेंडेशन मांगती है तो इट्स अ प्लस साइन फॉर यू, आपके लिए प्लस है, क्योंकि आप रिकमेंडेशन जब लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके फॉर्मेट के ही आपको नंबर इतने दे देगा कि आपको सारा पता है. जैसे कि कल मैंने आपको यानी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टर्म ऑफ रेफरेंस आपने लिखना है, प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी लिखनी है, वो सारी आज मैं बात आपको रिवाइज करती हूँ. ठीक है, तो अभी हमें आपको टाइप बता रही हूँ, और मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि किस वक्त आपने गेस कर लेना है कि इट इज इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, इट डज नॉट रिक्वायर रिकमेंडेशन. इट इज एनालिटिकल रिपोर्ट, इट रिक्वायर्स रिकमेंडेशन. आपको पेपर में इसके ऊपर सवाल भी आएगा. दे आस्क यू फॉर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर रिपोर्ट्स. ठीक हो गया? इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के कुछ नाम है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, यानी पीरियोडिक रिपोर्ट्स होती हैं, सिचुएशन के ऊपर रिपोर्ट होती हैं, किसी प्रोग्रेस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, अभी मैं आपको सारा ये बताती हूँ. प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि कोई काम स्टार्ट हुआ है,
उसकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है उसके ऊपर रिपोर्ट होती है। इन्वेस्टिगेटिव या कंप्लायंस रिपोर्ट है, मैं भी इसकी डेफिनेशन आपको सारी समझाती हूँ। इसके बाद है एनालिटिकल रिपोर्ट होती है, जो उसकी कुछ मिसालें दी हैं जिसमें आपके पास जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है या उसको रिकमेंडेशन रिपोर्ट ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई काम किया, आपने उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देनी है कि ये काम क्यों हुआ था, या फिर आपने रिकमेंडेशन देनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, जो किसी भी चीज की वायबिलिटी, यानी ये काम ठीक है कि नहीं, हमारे लिए इसका फायदा होगा कि नहीं, आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। यार्डस्टिक रिपोर्ट एंड रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट की तो आपको वैसे ही समझ आ गई, किसी जगह की रिसर्च की, किसी चीज आपने टॉपिक पर रिसर्च की। लेकिन जो यार्डस्टिक रिपोर्ट है वो आप देखिए तो इसका नीचे डेफिनेशन है, यार्डस्टिक रिपोर्ट इज वन that looks at multiple solutions to a problem. By defining the criteria with which a solution is chosen, each possible solution is then explained and recommendation is made. यानी एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन डिसाइड करते हो और उसके ऊपर आपने एक पूरा जो है एनालिसिस करके उनको देते हो। ये वाली रिपोर्ट जो है आपके सिलेबस में इसका जिक्र नहीं आया है, मुझे यकीन है, लेकिन फिर भी चले, मैंने लिख दी है और आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगी तो आप इसको पढ़ लेना। तो ये आपको पेपर में नहीं आने लगी क्योंकि आपके सिलेबस में इसका कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे ये एक रिपोर्ट है, इसका नाम है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट लिखा हुआ है, या स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोसेस लिखा हुआ है, मैं भी आपको समझा देती हूँ। हर वो रिपोर्ट जो स्टैट्यूटरी कहलाती है, दैट इज बेस्ड ऑन स्टैट्यूट, दैट इज द लॉ, आपके पर लॉ इम्पोज होता है कि आपने ये काम करना है, उस काम को स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, उसको कह दिया, अगर रिपोर्ट बना ली, अगर आपने फलां टाइम पर एक मीटिंग रखनी है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कह देते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लॉ। बस इतनी बात याद रखिएगा, इतनी इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, जो कि किसी भी चीज का पूरा एनालिसिस करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी ऑडिट, आप चेक करते हैं कि इंडस्ट्री जो है उसका ऑडिट किया आपने, या एक फर्म का या किसी कंपनी का ऑडिट किया, और आप देखते हैं कि कंपनी का पैसा कहाँ लगा हुआ है, कितनी वर्क फोर्स है इसके अंदर, कितना वो टैक्स पे करती है, कितना उसकी चीजें जो है, पैसा कहाँ से आ रहा है उसका, क्या उसका पैसा खुद अपना है इन्वेस्टर्स का, या वो क्रेडिट पे ले रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आप एनालिसिस करते हो और उसको कहते हैं ऑडिट करना। जैसे साल का एनुअल ऑडिट हो रहा होता है, ये आपने अक्सर सुना होगा। इसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये जो कि मेरे पास स्लाइड्स थी तो मैंने इसके ऊपर कर दिया है, लेकिन आपको डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल मिल जाएंगी। इसके ऊपर ये फिजिबिलिटी ये है कि जो येलो कलर वाला पार्ट है पढ़ रही हूँ, एन एनालिसिस ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज फीजिबल एंड शुड गो अहेड। अब इसकी मैं एक मिसाल पहले देती हूँ, फिर बाद में इसको पढ़ लेना। इसकी मिसाल ये है, जो मैंने शायद लास्ट क्लास में भी दी होगी। फिजिबिलिटी होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि ये काम कर लो, तो दूसरा बंदा कहता है नहीं यार इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं बनती, इसको क्या क्यों करें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक जगह पे अपना एक आउटलेट खोलना है, क्या उस आउटलेट में उतना प्रॉफिट आ जाएगा जिससे वो आउटलेट के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, उस पे जो आपने स्टाफ हायर किया उसको भी आपने सैलरियां दे देनी है, और फिर ऑन द टॉप ऑफ इट आपका प्रॉफिट भी निकलेगा, तो उसको खोलने की फिजिबिलिटी बनती है। और अगर आप ये कहते हैं नहीं जी बस खर्चा ही मुश्किल से पूरा होगा, फिर क्या फिजिबिलिटी है, फिर मत करें। तो आपने उसके ऊपर रिसर्च करके बताना होता है। यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडीज जो रेड कलर से लिखा है, ब्लू से नीचे लिखा हुआ है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, पैसा, कॉस्ट बेनिफिट होगा कि नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आप जो है कॉस्ट लगाएंगे उसका फायदा होगा कि नहीं होगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो कोई रिस्क तो नहीं आ जाएगा। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, क्या कंट्रोल किया जा सकेगा, एफिशिएंसी उसकी होगी, उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकेंगी। और स्केड्यूल फिजिबिलिटी भी देखी जाती है कि क्या ऑन टाइम सब कुछ हो जाएगा। तो ये फिजिबिलिटी जो है, यू कैन से दिस इज हाउ यू राइट अ रिपोर्ट, एंड ऑब्वियसली यू वोंट बी राइटिंग एनी रिपोर्ट लाइक दिस, but there are very simple examples I'll share with you, जिसके ऊपर आपको पेपर में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 10 नंबर के लिए सिर्फ लिखना होगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इतनी डिटेल और इतनी मुश्किल वाली चीजें आपको देते हैं, मगर ये नॉलेज आपको चाहिए ताकि आपका जहन खुल जाए और जब आप एक रिपोर्ट लिखें तो आपको अच्छी तरह उसकी समझ भी आ जाए। फिर एक रिपोर्ट है ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट। ये आपकी लाइफ में सीएमए करते वक्त आप इस रिपोर्ट का बड़ी दफा जिक्र सुनेंगे। अब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्या है, ये लिखा हुआ है इवैल्यूएट द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एनालिसिस है ये ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल्स,
और थरा इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस प्लान एंड मॉडल एनालिसिस, जो रिपोर्ट्स बनी होती है उनका एनालिसिस करते हो, और फाइनल ऑफरिंग फॉर्मेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, एग्जामिनिंग ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। असल में ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है क्या, इसके नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं जो नीचे एक ब्लॉक की शक्ल में लिखी है। ड्यू डिलिजेंस इज एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट or review for performed to confirm the facts of the matter under consideration. In the financial world, due diligence requires an examination of financial records before entering into a proposed transaction with another party. मिसाल के तौर पर आपने ड्यू डिलिजेंस जो कि एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है आपने तैयार की, आप उसी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप उस कंपनी जो है उसको या तो क्रेडिट आप देना चाह रहे हो या उस कंपनी के साथ मर्ज होना चाह रहे हो, तो पहले सबसे पहले कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले यू आर रिक्वायरिंग अ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट विच इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विच इज टेलिंग कि कंपनी इस वक्त उसकी हैसियत क्या है, उसके पास क्या है, कितना पैसा है, कितनी वो बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान का मतलब होता है मार कितनी खा सकती है और कितना इसको जो है नुकसान भी हो जाए तो वो कहाँ विथस्टैंड कर सकती है। अभी आपने देखा फॉर इंस्टेंस एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पैंडेमिक की वजह से कितनी ज्यादा कंपनीज जो है बैठ गई, यानी बैंकक्रप्ट हो गई, उन्हें बैंकक्रप्सी फाइल कर दिए क्योंकि वो उनका बैकअप इतना नहीं था, या समझ लें कि 6 माह के लिए अगर एक कंपनी कोई भी काम नहीं करती तो वो कैसे विथस्टैंड कर सकती है अगर उसका काम ऐसा था जो 100% बंद हो गया। कुछ काम ऐसे थे जो चलते रहे हैं लेकिन ज्यादा काम जो है बंद हो गए थे, तो आप फिर कैसे इस कंपनी को चला सकती है। तो बिफोर यू डिसाइड ऑन एनी ट्रांजेक्शन विद दैट कंपनी, तो आपने क्या करना है, आप उसकी पहले वर्थ को, उसकी हैसियत को, उसकी वर्थ को, उसकी एबिलिटीज को चेक कर लेते। ठीक हो गया। इसके बाद है जी आपके पास एक रिपोर्ट है, ये आपका जो है अगर आपके पास आईसीएमए की शायद बुक आए तो उसमें शायद ये आपको मिल जाए। ये एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट और ब्रैकेट में लिखा पीरियोडिक। अच्छा, ये बड़ी लंबी बातें लिखती है, बहुत ज्यादा लिखती है। अब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इसको इसलिए कहा गया कि ये रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रेकमेंडेशन। इसको मेमोरेंडम क्यों कहा गया, क्योंकि इसने मेमो का फॉर्मेट यूज किया हुआ, आप देख रहे हैं, टू दानिश फ्रॉम समबडी लैला, सब्जेक्ट है सीजन टिकट सेल्स और डेट लिखी है। ये बहुत पुरानी एक रिपोर्ट है, सिर्फ एक दफा, जैसे कहते हैं ना, जैसे विंडो शॉपिंग आप कर रहे होते हैं, मैं अक्सर ये वर्ड यूज करती हूँ, इट्स जस्ट लाइक विंडो शॉपिंग। अभी हम देख रहे हैं कि हर विंडो पे क्या है, तो एक रिपोर्ट पड़ी हुई है जो पीरियोडिक रिपोर्ट है। अब ये सारे नाम ऊपर लिखे गए, इसे घबराना नहीं, हमने हमने इनके नाम जो है इस पर समझ लेने हैं। इंफॉर्मेशनल है, नॉट हैविंग रिकमेंडेशन। मेमोरेंडम है, मेमो फॉर्मेट यूज कर रही है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट, मेमो फॉर्मेट है। पीरियोडिक है क्योंकि इंटरवल्स पे लिखी जाती है, यानी सीजनल है, साल बाद लिखी गई, 3 माह बाद लिखी गई। ठीक है। अब आप अगर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो लिखा है सीजन टिकट सेल फॉर 1998 इंक्रीज 15.1% ओवर लास्ट ईयर। दिस ईयर इतनी टिकट सोल्ड हुई हैं, इतनी टिकट जो है वो लास्ट ईयर सोल्ड हुई थी। आपने एक कंपैरिजन दिया और आप साथ कह रहे हैं कि आपने जो नया इस वक्त तरीका अडॉप्ट किया था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, और फिर उसने पिछले सालों की रिपोर्ट्स का टिकट की सेल का कंपैरिजन दिया, और बकायदा उसने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर और इंक्रीज कितने परसेंट हुआ वो बताया। और फिर उसने कहा सबसे एंड में, द रेनोवेशन इन आवर न्यू वाटर पार्क हैज रियली इंक्रीज्ड आवर सेल्स कंसिडरेबली। द सीजन टिकट सेल्स कैंपेन हैज ऑफिशियली एंडेड। आई होप यू आर प्राउड ऑफ द रिजल्ट एज वी आर इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने आज तक बहुत अच्छा काम किया है और हमारी सेल बढ़ गई है। तो आप ये समझ लो कि छोटी सी एक रिपोर्ट है जिसमें आपने थोड़ा सा डेटा बना दिया है, और आप इस तरह की रिपोर्ट भी आपको आ सकती है, आप ये रिपोर्ट प्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ ये आपको मिल जाएंगी रिपोर्ट्स, आप इसको देखिएगा। तो आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ, सिचुएशंस देखिएगा और जितनी सिचुएशंस आपके पास आएंगी वो सारी पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसी रिपोर्ट्स हमें आ सकती हैं और हमने कैसे उनको प्रेजेंट करना है। और ये जो रिपोर्ट है आप देखेंगे, इसमें तो ना उसने कोई टर्म ऑफ रेफरेंस की हेडिंग दी है, ना उसने कोई उसके ऊपर फाइंडिंग्स की हेडिंग दी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको रिपोर्ट के ऊपर जो है, आप बेशक आप चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस दे सकते थे और आगे आप डिटेल्स कह दो या डिटेल डेटा की हेडिंग दे दो,
तो आप बाजुकात हेडिंग अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो हेडिंग मैंने आपको सिखा दी, जैसे मैं अभी आपको रिवाइज कराऊंगी, वो हेडिंग एज अ जनरल रूल आप याद रखोगे, और जहां पे आपको फ्लक्चुएट करना है, आपको चेंज करना है, आपको अडेप्ट करना है, आप अपने पॉइंट को समझाने के लिए चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक एनालिटिकल रिपोर्ट आई। ये एनालिटिकल क्यों है? इसके अंदर रिकमेंडेशंस और बगैर हेडिंग के ये भी बनी हुई है, जिसमें एक जनरल मैनेजर एक्सवाईजी कॉर्पोरेशन का है, उसने एक सब्जेक्ट दिया है, उसने डियर सर विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड दिस आई हैव कंप्लीटेड माय रिपोर्ट, ये रेफरेंस है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर टर्म ऑफ रेफरेंस की हेडिंग दे सकते हो। और उसके बाद आगे वो लिखता है द प्रॉब्लम स्टार्टेड। अब वो आपको असल में बैकग्राउंड हिस्ट्री दे रहा है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, स्मार्ट हैं, तो मैं इसके लिए कहूंगी कि इस वाले सेगमेंट पे आप बैकग्राउंड एनालिसिस करते हैं। हेडिंग क्या है आपकी? बैकग्राउंड एनालिसिस। सिचुएशन के मुताबिक आपने क्या करना है? बैकग्राउंड एनालिसिस दिया। अब असल में रिपोर्ट है क्या? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ग्रैंड कॉर्पोरेशन। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो पैसे आपने उनसे लेने थे वो ड्यू है, डेट और गुजर चुकी है, और अभी तक वो नहीं दे रहे, और इसके ऊपर उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बना के रखी हुई है। और उन्होंने कहा जी ऑर्डर उन्होंने फलां डेट को दिया था, इसके अंदर आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी। आपको जो है फलां डेट को ऑर्डर दिया था, और वो ऑर्डर जो है वो पूरा हमने कर दिया था, फुलफिल कर दिया था, लेकिन उन्होंने हमें जो है पेमेंट नहीं की है, और पेमेंट जो है वो इतनी रह गई है। तो आप सारा को ये आप सारा इसकी जो डिटेल है वो पढ़ लेंगे। आप देखिए तो ये रिपोर्ट जो है, चूंकि ये काइंड ऑफ लेटर से मिलती जुलती है, तो उसने इसको लेटर रिपोर्ट कह दिया, बिकॉज ये मेमो रिपोर्ट तो नहीं है। तो मैं अभी आपको जो सही फॉर्मेट सिखा दूंगी स्लाइड के एंड में जाके, वो आपने याद रखना है, ठीक है। उसमें वेरिएशन आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप कहेंगे नहीं मिस, हमने तो आईसीएमई की बुक में देखा इस तरह बना हुआ है, हमने कैप्लन में देखा ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल वेरिएशन कर सकते हो। लेकिन क्यों ना हम वो चीज सीख लें जो बाद में तंग ना करे, हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको वहां तक लेके जाती हूँ। अब आपने मेरे से जरा ध्यान से समझिए। अभी मैं आपको दोबारा से टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स नोट्स पे ले जाऊंगी, आपको सारा समझाऊंगी, फिर वो आप याद करेंगे। अब और मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो बननी भी दिखाती हूँ कि कैसे जो है वो आप रिपोर्ट बना सकते हैं। एक रिपोर्ट है, ये सीए की एक रिपोर्ट है जो 2017 में आई थी, ऑटम 2017 में। इस रिपोर्ट में जरा ध्यान से सुनिएगा क्या सिचुएशन है। सिनेरियो ये है कि कामरान खान हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। कामरान खान आप हैं, क्योंकि आप रिपोर्ट लिखेंगे ना, आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर आपका रोल है। जोहरान हाउसिंग लिमिटेड ने आपको हायर किया ड्यूरिंग हिज विजिट। अब कामरान का काम क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, जो चेक करेगा कि क्वालिटी का सामान काम सब कुछ हो रहा है, वर्किंग हो रही है। और जो कंपनी है वो क्या करती है? हाउसिंग लिमिटेड, यानी वो घर बना कर देती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, हाउसिंग लिमिटेड है, कुछ भी है। ड्यूरिंग हिज विजिट, अब उन्होंने इसने एकदम टू दी पॉइंट बात की है, अपने विजिट के दौरान टू एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें 300 बैंगलोज यानी 300 घर बन रहे हैं। अब आप ये नोट करो, गौर करें इस बात के ऊपर कि अगर घर बन रहे हैं तो आपने फॉर इंस्टेंस मैंने आपने एक ऑर्डर किया हुआ है घर, और हमारा घर बन रहा है, तो हमें वो क्या देंगे? पोजेशन देंगे। तो पोजेशन तो देंगे, लेकिन इससे पहले कितना वहां पे काम हो रहा है, किस तरह लोग अपनी यानी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि भाई क्वालिटी चेक हो रही है। तो 300 बंगले वहां पे प्रोजेक्ट पे बन रहे हैं। ही ऑब्जर्व्ड इनकंसिस्टेंसी इन मिक्सिंग रेशो ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इंस्पेक्शन के दौरान उसने क्या किया? वहां पे चेक किया कि मटेरियल जो है वो बराबर का इस्तेमाल नहीं करे। इनकंसिस्टेंसी यानी मिसाल के तौर पर आपको पता है कि सीमेंट और सैंड आप इसको मिक्स करते हो, और या किसी जगह पे कंक्रीट साथ मिक्स होता है जो बजरी जिसे कहते हो। अगर आप समझते हैं कि रेशो जो है वो 3:1 की होनी चाहिए, 2:1 की, या 4:1 की, वट या 4:2 की, जो भी आप कहेंगे, तो आपने इमेजिन कर लेना है और कहना है कि वहां पे रेशो जो है वो बराबर नहीं यूज हो रही थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। He also found that non-approved brands were being used. वहां पर
ऐसे ब्रांड जो कि आपने अप्रूव नहीं किए थे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो इस्तेमाल हो रहे हैं. यूज्ड along with approved brands in the installation of concealed, जो आपकी इलेक्ट्रिक वाटर सीवरेज फिटिंग. अब कंसील्ड क्या होती है? जो अंडरग्राउंड जिसे आप कहते हैं, यानी जितनी भी यूटिलिटी जो सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिक वाटर या सीवरेज की, उसकी फिटिंग अंदर लग रही है, उसके लिए इंस्टॉलेशन हो रही है, उसके लिए आपने गलत ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपने प्रूव नहीं किया था. Moreover, the site supervisor was least interested in compliance with health and safety procedures for laborers. अब क्या है, जो लेबर जो स्टाफ काम कर रहा है उनकी हेल्थ के ऊपर वो बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर अगर बहुत डस्टी एरिया है, बहुत डस्ट है, उनको कोई फेस के ऊपर पहनने के लिए मास्क, या कोई ऊपर से मटेरियल गिर सकता है उनके लिए हेलमेट पहनना, या कोई जैकेट्स पहनना, या रात के वक्त अगर काम कर रहे होते हैं तो आपकी रिफ्लेक्टर वाली जैकेट्स होती हैं. ये सारी बातें जो है ना, ये इस सिनेरियो में नहीं लिखी हुई, आपको इमेजिन करनी है. अब आप कहेंगे कि मेरा तो दिमाग फारिग हो चुकेगा, पेपर में सामने सवाल आया हुआ है, मैं इतना कैसे इमेजिन करूंगा? आप बिल्कुल कर सकते हैं. भला कैसे? अगर आपने प्रैक्टिस की होगी. आपको सिनेरियो मैं अभी दे दूंगी सारे, आप उन सिनेरियो पे वर्किंग करेंगे. एक सिनेरियो पढ़ेंगे, उसके ऊपर आप स्केचेस बनाएंगे कि भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है. आप अपने तौर पर एक पूरा इमेज बना लें और फिर उसके बाद रिपोर्ट का सोल्यूशन पढ़ेंगे, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि मैंने क्या सोचा था, क्या मेरा आइडिया, इमेजिनेशन मैच कर रहा है कि नहीं, या फिर बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ. आगे एंड द मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स वर नॉट बीइंग फॉलोड, और कुछ प्रोसीजर जो कि सेफ्टी प्रोसीजर हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे. अब ये सारी बातें क्या है, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ. और इसके नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है, अब आपको लिखा था उसने, एग्जामिनर ने, ऑन बिहाफ ऑफ कामरान राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ZHL, मैनेजमेंट के लिए लिखनी है. द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशन प्रिवेलिंग एट द साइट. प्रिवेल मीन छाया होना, किसी चीज का मौजूद होना, तो एडवर्स मीन नेगेटिव, बुरा. बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको हाईलाइट कीजिए. अब आप गौर करें तो इस रिपोर्ट में या तो आप टोटली नेगेटिव रिपोर्ट बना सकते हैं कि मैंने जाके देखा ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल आप बना सकते हैं. और दूसरी सूरत में आप कुछ चीजों को थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा लाइट भी टोन में रख सकते हो, तो आप कर सकते हो. अब आप जरा गौर करें, आप कामरान खान हैं, आप रिपोर्ट बना रहे हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हैं, आपने ये मसाइल वहां पे चेक किए. अब मैं आपको, ये 15 मार्क्स की लिखा है लेकिन आपको 10 मार्क्स की रिपोर्ट आएगी. मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखा है, आपको स्माइली वाला जो है कार्टून सोच शो कर रहा है पिक्चर, कि व्हाट शुड यू इमेजिन, आप क्या इमेजिन करोगे, आप सोचें. उसके लिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट है जिसको मैंने रिपोर्ट बनानी है, लेफ्ट साइड पे देखो छोटे वाला ब्लॉक जो बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, पिक्चर के नीचे, तो आपको दिखा रहा है डायरेक्टर या चेयरमैन होगा बंदा, या कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है. आपका जो दिल चाहता है उसका डेजिग्नेशन आप लगा सकते हैं. अच्छा, उसके बाद वहां पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं वो हम इमेजिन कर रहे हैं. नीचे वाला जो पार्ट है सबसे लेफ्ट साइड पे, उस पर लिखा है फॉल्स फ्रॉम हाइट्स. आपने ऑब्जर्व किया कि लोग एक दो दफा जख्मी हुए, आपको रिपोर्ट मिली है, या आपने वहां पे एक दो दफा सर्वे किया बगैर बताए, अचानक एक सरप्राइज विजिट किया, तो आपने देखा और आपको लोगों ने, लेबरर्स ने बताया. उसके बाद स्कैफोल्ड क्लैप्स हो जाते हैं. ये क्या होते हैं? जैसे वो करते हैं ना, नेटवर्क सा बनाते हैं, वो गिर गया, आपने उसके ऊपर कोई मेजर नहीं लिया लोगों ने. इलेक्ट्रोकुशन यानी बिजली का लग जाना. ट्रेंच कोलैप्स हो गई, ट्रेंच आपने बनाई कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कोलैप्स हो गई. रेपिटेटिव मोशन इंजरीज हैं, जिसमें कि लोग जो है मूव करते हैं तो उनको इंजरीज आती है, जैसे कुछ चीजें ऊपर नीचे जा रही होती हैं, आपने देखा वो ट्रॉली सी होती है, इसको ड्रैग करते हैं, या उनके पास वो व्हील बैरो होते हैं जो को लेकर जाते हैं, वो भी मसला कर सकते हैं. फेलियर टू यूज अ रिक्वायर्ड, आपका पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, इसको पीपीई कहते हैं. ये मैं आपको ये नहीं कहती कि आपको सारा कुछ आता होगा, मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इनमें से जो आपके जेहन में आता है, एक दो चीजें बस इमेजिन कर लो, सारी करने की जरूरत नहीं है. आपने कुछ भी कह दिया, जैसे मैंने अभी कहा था हेलमेट नहीं उनको प्रोवाइड किए जा रहे, उनको जो है जैकेट्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, उनके जो काम करते हैं उनको हाथों में ग्लव्स चाहिए वो नहीं पहनाए जा रहे.
तो ये सारी चीजें, या उनके शूज जो है वो स्पेशल होते हैं, वो नहीं किए जा रहे, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा बता सकते हैं। और उसकी एक हेडिंग दे सकते हैं कि सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे, उसके नीचे की हेडिंग में कुछ लिख देंगे। और अगला जो टॉपिक है वो है रेशो यूज फॉर स्लैब्स, कॉलम्स, बेस, फाउंडेशन, रैफ्ट्स आप यूज करते हो, वो जो लकड़ी के होते हैं स्ट्रक्चर, बीम्स यूज करते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं। आपको अगर किसी का नाम आता है तो लिखे, नहीं आता तो आप कुछ ही, जैसे आप कह सकते हैं कि मटेरियल ए मटेरियल एक्स के साथ मिक्स किया जा रहा है जबकि वाई के साथ मिक्स करना था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जस्ट इमेजिन, बिकॉज आप कोई कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है ना, आप कोई कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट नहीं, ना ही आप इंजीनियर है, आपको क्या आता है, नहीं आता कुछ भी, तो आप खुद ही जो आपके मटेरियल्स होते हैं उनके नाम खुद ही आप बना सकते हैं। समझ रहे बात को? इसके बाद मोटर मिक्सिंग रेशो, जो आप मोटर बनाते हैं ना, जो आपका जो सीमेंट और रेत को मिलाकर आप बनाते हैं, उसकी रेशो है साइड सीमेंट, सैंड, ग्रेवल, स्टोन, वाटर, कुछ भी, ये सारी चीजें मिक्स होती हैं, इनमें से किसी का नाम आता है, मेरे ख्याल सीमेंट और सैंड का नाम तो जरूर आता होगा, कि वो मिक्सिंग रेशो ठीक नहीं है। इसके बाद ब्रांड एक्स यूज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ वाई, मुझे क्या पता कौन से ब्रांड यूज होते हैं, तो आपने कहा जी जो भी कंसीलमेंट के लिए ये वाले ब्रांड अप्रूव थे एक्स, जबकि ब्रांड वाई यूज भी किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अब आपने कुछ पॉइंट्स उनको, यानी अब आपने रिपोर्ट जब बनानी है उसमें कुछ चीजें कंसिडर करनी है। मैंने लिखा है फॉलो पॉइंट्स फॉर कॉजेस। इसके पीछे क्या है, ये सारे जो हैं, क्या सब बेईमान लोग बैठे हुए हैं और काम आपका खराब करने बैठे हुए हैं, सारी ये वजह हो सकती है? नहीं, कुछ थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव भी होती है। मिसाल के तौर पर, पहली बात है ट्राई टू अवॉइड एक्यूजेशन। आपने एक्यूज करना, किसी को इल्जाम तराशी सीधा सीधे करनी, उससे अवॉइड आप करेंगे। आप कह सकते हो फंड शॉर्टेज है। मैंने जब पता किया फाइनेंस वालों के साथ, अकाउंट से डिटेल ली, तो आपके पास फंड शॉर्टेज है। और उन्होंने, गलती उनकी ये है कि फाइनल अथॉरिटीज को मेंशन किए बगैर ये बात उन्होंने क्या कर दिया है, खुद ही डिसाइड कर दिया, और रेशो भी खराब कर दी ताकि वो मीट कर सकें अपने बजट को। और दूसरा, उन्होंने जो है ब्रांड जो है वो यूज करना शुरू कर दिया दूसरा, ये बात भी हो सकती है। तीसरी बात इसमें है अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये भी हो सकता है। और इंपोर्ट इश्यूज, मिसाल के तौर पर कुछ मटेरियल जो एक्स ब्रांड पहले आया करता था उसकी शॉर्टेज हो गई है, किसी वजह से आप कह लें कि वो मटेरियल जो है वो नहीं आ रहा, जो बॉर्डर पे कोई कह सकते हैं कि जो है प्रॉब्लम हुई भी है, या जो स्टॉक है वहां पर आपकी जो है वो शिप्स नहीं आ रही हैं, वो रुके हुए हैं, कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकती है, कोई सिक्योरिटी रीजन हो सकती है, जिसकी वजह से आपने क्या किया है, दे वर फोर्स टू यूज एक्स ब्रांड या वाई ब्रांड इंस्टेड ऑफ एक्स व्हाटएवर। और लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि मैंने उसका इंस्पेक्शन करवाया है और वो मटेरियल में कोई खास इतना फर्क नहीं है, वो जो है तो वही लोकल ब्रांड, लेकिन उसका मटेरियल जो है उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी क्वालिटी एग्जैक्टली वही है जो बाहर से आया करता था। तो ये रिपोर्ट बना दी ना आपने। अब अगर ये नहीं होता कि ये रिपोर्ट जो तुम पेपर में बनाओगे वो कुछ सचमुच की रिपोर्ट है, तुमने कौन सा जाके वाकई में सर्वे किया, जब वाकई जाके करोगे फिर तो सच बताओगे। लेकिन जब तुम अब रिपोर्ट बनाओगे तो उसके लिए जरा ख्याल रखना कि हम ऐसे मटेरियल या चीजें बनाकर दें उनको, ऐसा वहां पे कंटेंट लिखेंगे जिससे कि एक्सेप्टेबल हो जाए। तो ये सारा मैंने आपका जहन खोलने के लिए आइडिया दिया है कि एक पेपर में ये पूछा गया था और आपने ये रिपोर्ट बना दी। अब सुने गौर से एक बात, अब यहाँ पर आपके पास कुछ, मैंने यहाँ पर ये कुछ और भी लिखा है कि आपका जैसे डिफरेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट रखे जाएं, ये मैंने कुछ रिकमेंडेशन लिखी हैं। आपने वर्क साइट की वैल्यूएशन की दोबारा की जाएगी, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए, नीचे लिखा है मैंने, ताकि नए वर्कर्स जो हैं उनको भी वो यानी तरीका आए, सेफ्टी ट्रेनिंग के अपडेट्स एम्प्लॉयज को दिए जाएं, उनको सारी चीजें इशू की जाएं, जैसे हेलमेट है, सेफ्टी ग्लासेस हैं, विजिबिलिटी वेस्ट होती हैं जो रात के वक्त पहनती है ना, जिसके अंदर चमक रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, जो ऊपर पहनी होती है, वेस्ट टाइप चीजें, और प्रोटेक्टिव ग्लव्स है, प्रॉपर क्लोथिंग है, एंटी स्लिप फुटवेयर है। ये सारी चीजें मैं आपके वैसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको कभी पेपर में बैठ के याद नहीं आएंगी, लेकिन हेयरिंग प्रोटेक्शन है, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, फेस शील्ड है, सेफ्टी हार्नेस है, ये टू प्रिवेंट फॉल्स, यानी सेफ्टी हार्नेस होती है जो आप अपने साथ बांध लेते हो
ताकि आप गिरे ना, ठीक है। अपनी बॉडी के साथ उन्होंने बांधी, अपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी हाइट पे जब लोग काम कर रहे हैं तो ये कर रहे होते हैं। तो इनमें से जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी आप लिख देना, जो नहीं होंगी वो रहने देना, थोड़ा बहुत लिख देना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये कोई ऐसी कोई 25 या 50 नंबर की रिपोर्ट नहीं है कि जिसके अंदर ये सारा ना लिखा मैंने तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। नॉट एट ऑल, आपने बस सिंपल सा ही काम रखना है। तो मैं आपको सिर्फ आपका इमेजिनेशन को बेहतर करने के लिए इतना कुछ बता रही हूँ। जैसे अंग्रेज कहता है ना कि स्काई इज द लिमिट, कि आप जितना सोचना चाहते हैं सोचे, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो आपने ये सारी चीजें, और वैसे भी अगर आप ये कहेंगे मिस ये इतनी चीजें कहाँ मिलती हैं, हेलमेट है, सेफ्टी ग्लासेस हैं, फेस शील्ड है, ये पाकिस्तान है भाई, देसी मुल्क है, बजट नहीं है, लोगों से काम तो करवाते हैं लेकिन उनके पास वो, और इवन ये नहीं मैं कहती पाकिस्तान, बाहर के कंट्रीज में कई दफा लोग पकड़े जाते हैं कि वो जो है सेफ्टी जो है वो नहीं उनको कर रहे होते, वो सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहे होते, और वो अपनी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रहे होते। तो ये सारी आपके लिए इंफॉर्मेशन। अब आपने रिपोर्ट लिखनी है। इसी रिपोर्ट को लिखने के दो तरीके। आपको उसने किसी फॉर्मेट के बारे में नहीं बताया, आपको उसने ये भी नहीं कहा कि रिकमेंडेशन लिखो या ना लिखो। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप रिकमेंडेशन ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि ये हो रहा है, मैंने चेक कर लिया है। आप ये तो नहीं कहेंगे ऐसा करने दें, उस तरह होना दें। अगर आप समझते हैं हाँ हाँ आपको कुछ रिकमेंडेशन देनी है कि बजट अप्रूव कर दिया जाए और इतना बजट बढ़ा दिया जाए ताकि वो सेफ्टी की लिए चीजें ले सके, वो अपनी जो है अपनी रेशो ठीक कर सके, या क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो दोबारा जाके सर्वे करे, इस तरह की कुछ चीजें अगर आप देना चाहें तो आप अपनी मर्जी है। रिकमेंडेशन आपके दिमाग क्रिएट करता है तो बना दो, अगर क्रिएट नहीं करता तो कंक्लूजन पे खत्म कर सकते हो, बिकॉज उसने एग्जामिनर ने आपको कुछ भी नहीं कहा, उसने बिल्कुल नहीं कहा कि कैसी टाइप की रिपोर्ट है। तो अगर आप रिकमेंडेशन नहीं बनती छोड़ दो, अगर बनती है तो थोड़ी बहुत दे दो, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट का अब फॉर्मेट आप क्या लिखेंगे। आपको मिस्टर एबीसी आप हैं, आपका नाम नहीं उसने मुझे बताया, जो रिसीवर है, चेयरमैन हो सकता है, मैंने मिस्टर एबीसी कॉमा चेयरमैन जोहरान हाउसिंग लिमिटेड ये मुझे पता चला है। मुझे नहीं पता उसका जगह कौन सी, ये नहीं बताया उसने, तो मैंने इमेजिन करके हेड ऑफिस 23 एबीसी रोड सिटी ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़नी है पेपर में, ये चूंकि इस स्लाइड के ऊपर पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऐसा ना कर सकी, आपने करना है। आपने एक लाइन छोड़ी, रिपोर्ट ऑन वर्किंग कंडीशन एट कंस्ट्रक्शन साइट, आपने ये लिखा। आपने अगर कोई और लिखना है, रिपोर्ट ऑन वर्किंग कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 300 बैंगलोर एबीसी साइट, कुछ ऐसा लिखना है, जो करना है कर लो, कर सकते हो। एक आपको मैं आइडिया दूंगी, जब भी आप एक हेडिंग दोगे, सब्जेक्ट लाइन दोगे, उसका हर लफ्ज कैपिटल से शुरू करोगे। ये एक रूल है, ये रूल कहीं लिख लो, समझ लो। हर लफ्ज कैपिटल से शुरू करोगे, पहले वाला भी कैपिटल से शुरू करोगे, लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रेपोजिशन आ रही है, जैसे ऑन, एट, इन, या कोई आर्टिकल आ रहा है, ए, एन, द, इसे आर्टिकल्स कहते हैं ना, ए, एन और द, या फिर कोई कंजंक्शन आ रही है, वो क्या होती है, एंड, सो, बट, हाउएवर, कुछ इस तरह के, ये सारी कंजंक्शंस हैं। अगर ये आ रही हैं तो इनको छोटा रहने देना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दो प्रेपोजिशंस आ रही हैं, मैंने छोटे रहने दी। तो आपको क्या सिखा रही हूँ, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, तीनों आर्टिकल्स यो ए, एन और द, इनको छोटा रखना। अगर इनमें से कोई चीज पहले आ रही है, जैसे मैंने लिखा दी रिपोर्ट, तो दी शुरू में चला गया तो मैं टी कैपिटल कर दूंगी, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर वो मिडल में कहीं आ रहे हैं तो आपने बड़े नहीं करने, ये एक रूल है जो यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन इसको अंडरलाइन नहीं आप करेंगे। समझ आ रही है बात की। तो इस तरह तुम रिपोर्ट बना देना, उसके नीचे तुमने डेट लिखी है, अगर चाहते हो उसके ऑपोजिट रेफरेंस नंबर देना तो दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लेटर में सिखाया। उसके बाद फिर आपने लाइन छोड़नी है, हेड सब्जेक्ट लाइन के बाद भी लाइन छोड़ेंगे, दो दफा एंटर प्रेस करोगे, डेट लिखोगे, जैसे डेट मैंने आपको लेटर में सिखाई थी वैसे ही लिखोगे। फिर आपने दो आपने दफा एंटर प्रेस किया, स्पेस निकल आएगी, आपने डियर सर लिखा, फिर नीचे आपने स्पेस देनी, हर बात के बाद एक एक आपने स्पेस देनी। अगर आप स्पेस देना भूल भी गए और एग्जामिनेशन में चला गया तो कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपका जो पेपर है उसमें इतनी ज्यादा वो जो है चीजों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं तवज्जो देंगे, ज्यादा देंगे कि आपको फॉर्मेट आता है और आपने इसके ऊपर अच्छे वर्ड्स लिखे।
आपकी हेडिंग टर्म ऑफ रेफरेंस या इंट्रोडक्शन दोनों में से कुछ लगाओगे। आपकी जी दिस रिपोर्ट रेफर्स टू योर इंस्ट्रक्शन टू विजिट द साइट, ये आपने किया। मेथोडोलॉजी में आई मेड विजिट्स, आई मेड सरप्राइज विजिट्स आपने किए। डिस्कस्ड द इश्यूज विद द सुपरवाइजर से मैंने किया, मैंने वहां के लेबरर से बात की, मैंने इंस्पेक्शन की सारी सेफ्टी चीजों की, आपके सेफ्टी जो है वह मेजर्स की। ये आपकी मेथोडोलॉजी। फाइंडिंग्स में आप लिखोगे कि जी मैंने ये पाया, मैंने ये पाया, मैंने ये पाया। अभी आपने लिखा है, बताया है कि इतना मिक्सिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, इतना आपका ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा कुछ आपकी फाइंडिंग्स में आपके पॉइंट्स आ गए। फिर आपने कंक्लूड किया कि आपको जल्दी मेजर्स लेने पड़ेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर हो जाए या फ्लॉप हो जाए, क्योंकि आपने जिनको भी, जाहिर बात है, घर बना कर देनी है, वो अगर देखेंगे कि भाई आपका नहीं है तो आपकी जो गुडविल खराब हो जाएगी ना कंपनी की। तो आपने ये चीजें लिखनी है। उसके बाद रिकमेंडेशन आपने, मैंने बोला अभी रेड कलर इसीलिए किया है, दिल मानता है तो दे दो, समझ में आती है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन यही है कि जी आप बजट बढ़ा दें, आप सेफ्टी जो है उसके लिए उनको चीजें प्रोवाइड करें, या फिर उनको किया जाए, ये ट्रेनिंग कराई जाए इनकी, जो सुपरवाइजर्स हैं आपके, जो वहाँ पे हेड है उनके, ताकि वो उनको चीजें जो है वो सही दें। उसके बाद ये खत्म हो जाए, फिर आपने लाइन छोड़ी योर सिंसियरली, आपने वर्ड लिखना है सिग्नेचर, लफ्ज लिखना है सिग्नेचर। नीचे आपका पूरा नाम है, कामरान खान पूरा लिखेंगे, मैंने यहाँ पे खान नहीं लिखा। आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है, ये आपकी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी। ये बात आपको मेरी समझ आ गई है ना? दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये आपको मैंने बता दिया तरीका। दूसरा ये होता है कि बाजुकात वो ये भी नहीं बताते किसको लिखनी है, क्या करनी है। एक तो ये परफेक्ट तरीका आप समझ लो, ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम टॉप पे लिखते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं, दरमियान में रिपोर्ट ऑन वर्किंग कंडीशन लिख देते हैं, और नीचे सारी रिपोर्ट ऐसे बनाते हैं जैसे कि मैंने बनाई है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर आप कहेंगे नहीं हम तो मिस्टर एबीसी चेयरमैन, चूंकि इसने किसी को पुकारना है, ये नहीं करना, तो आपने जैसे कि लेटर में किया था, जोहरान हाउसिंग लिमिटेड टॉप पे लिखो, नीचे हेड ऑफिस लिखो, उसका पूरा वेबसाइट वगैरह लिखो, फिर रिपोर्ट ऑन वर्किंग कंडीशन करके, क्योंकि यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं आ रहा उस बंदे का जिसको आपने लिखी है। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन क्यों अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हो? ऐसे कर लेना, जो मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगी, आप इसको फॉलो कर लेना। ठीक हो गया? अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ। हो सकता है कि वो आपको कहे एक मेमो रिपोर्ट बना दो, एक मेमो रिपोर्ट बनाओ, यानी विद इन कंपनी जा रही है ना, इंटरनल रिपोर्ट है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? ऊपर लिखा जोहरान हाउसिंग लिमिटेड मेमोरेंडम रिपोर्ट, हेडिंग दी, उसके नीचे आपने एक लाइन छोड़ी, और लेफ्ट साइड पे चार चीजें बगैर लाइन छोड़े लिखनी है। टू मिस्टर एबीसी कॉमा चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, और टू के बाद कोलन, फ्रॉम कोलन यानी दो डॉट्स, कामरान खान पूरा नाम लिखिए, कॉमा क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, ये आपको बताया गया है उसमें। डेट आपने लिखी कोलन जून 14 कॉमा 2020, ये आपको डेट लिखनी सिखाई है मैंने पहले भी। सब्जेक्ट लाइन रिपोर्ट ऑन वर्किंग कंडीशन एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो आपको जब मेमो रिपोर्ट वो कहेगा तो ऐसे लिखेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, और भी आसान, मेमोरेंडम रिपोर्ट नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं टू मिस्टर फ्रॉम दिस डेट, जैसे खत में लिखते हैं वैसे डाल देते हैं विदाउट वर्ड डेट, और जो सब्जेक्ट लाइन दरमियान में कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। लेकिन अगर आपको कहेगा मेमो रिपोर्ट, तो फिर आपने इससे हटना नहीं, आपने बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपकी बेहतरीन रिपोर्ट हो जाएगी। और आंखें बंद करके एग्जामिनर आपको जो है मार्क्स कर देगा, क्योंकि आपका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके बाद आप डियर सर लिख रहे हैं, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, आप बेशक ना लिखें, क्योंकि ये एक मेमो रिपोर्ट है, लिख लें तो अभी ठीक है। टर्म ऑफ रेफरेंस या इंट्रोडक्शन हेडिंग, मेथोडोलॉजी हेडिंग, फाइंडिंग हेडिंग, कंक्लूजन हेडिंग, रिकमेंडेशन हेडिंग, आखिर में सिर्फ सिग्नेचर का लफ्ज लिखोगे। अपना नाम दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि नाम तुम्हारा ऊपर आ चुका है, आप फ्रॉम लिख तो चुके हो अपने नाम के साथ, फिर अब जरूरत नहीं रह गई। तो ये आपको, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये बात समझ आ गई। आप इसको नोट कर लो कहीं पे, कि जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आखिरी स्लाइड्स पर आपके पास एक सिनेरियो है, उसके आगे इमेजिनरी डिटेल मैंने दी है स्लाइड्स पर, जो मैं आपको एक दफा फिर से दिखा देती हूँ। ये सिनेरियो है, इसके आगे दो स्लाइड्स
इमेजिनरी डिटेल्स के ऊपर हैं, जो आपकी रफ वर्किंग होगी और जो कुछ आपके दिमाग में आएगा आप इसको यूज करेंगे। और उसके बाद आपके पास फॉर्मेट की, ये आपने फॉर्मेट यूज करना है, अनलेस वो आपको कहता है मेमो रिपोर्ट, तो आपने ये वाली मेमो रिपोर्ट दे दी। और फिर वही बात है, अगर आपका दिल चाहता है कि नहीं हम जो है टू somebody फ्रॉम somebody, जो भी आपके नाम है और सब्जेक्ट लिखकर ऊपर फिर मेमो रिपोर्ट का हेडिंग ना देना, तब भी आप रिपोर्ट लिख सकते हो। मेमोरेंडम रिपोर्ट का लफ्ज निकालेंगे क्योंकि उसने आपको नहीं कहा मेमो रिपोर्ट, आपने खाली बस टू फ्रॉम, डेट साइड पे लिख लो, डेट टॉप पे लिख लो जैसे कि खत में लिखते थे, और सब्जेक्ट का वर्ड लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो रिपोर्ट दरमियान में कर दो, जैसे कि ऐसे, जैसे कि आप पिछले वाली स्लाइड पे देख रहे हो। ठीक हो गया? आपके पास ये आपको 3 ऑप्शंस मैंने दे दी, उसके बाद आपकी रिपोर्ट हो गई। बाकी इसका जो पार्ट है मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर कल बात करूंगी। अब मैं आपको जरा नोट्स के ऊपर लेके जा रही हूँ। वहां से हमने जो है जी, अब आप देखेंगे कि आपको मैं, चूंकि आपके पास ये नोट्स आ जाएंगे ना, और कल मैं ऑब्वियसली आपको नया टॉपिक कराऊंगी तो इसको आप फिर दोबारा नहीं आप देखेंगे। मैं आपको शुरू में लेके जा रही हूँ। ये आपको मैंने बताया था, मेरे पास ये स्कैन की हुई पीडीएफ है, इसमें मैं चेंजेस नहीं कर पाई, तस्वीरें हैं आपको फायदे के लिए। आपको सिखाया क्या था मैंने, रिपोर्ट के बेसिकली ये हिस्से होते हैं: इंट्रोडक्शन, टर्म ऑफ रेफरेंस, मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर, फाइंडिंग्स जो आपने हासिल किया, कंक्लूजन आपका डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है तो लिखेंगे, वरना रिकमेंडेशन देने की पूरी कोशिश करना, और समरी आपने बिल्कुल नहीं लिखनी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आपको याद है ये रिपोर्ट आपको मैंने समझा दी थी, मैंने आपसे कहा था फॉर्मेट मैं सिखाऊंगी, आपने रिपोर्ट सिर्फ पढ़नी है फॉर कंटेंट, फॉर द मटेरियल, उसके लिए मैंने आपको ये रिपोर्ट सिखाई थी। और मैंने आपको इसमें सिखाया था कि इंट्रोडक्शन या टर्म ऑफ रेफरेंस का पहली लाइन याद कर लो, मेथोडोलॉजी की पहली लाइन याद कर लो, फाइंडिंग्स की कर लो, कंक्लूजन की कर लो, ये भी आपको मिल जाएगा। आपने ये रिपोर्ट का इस तरह, और आपने हर रिपोर्ट की हेडिंग जरूर देनी है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ जाएंगी जिसकी की फाइंडिंग कंक्लूजन नहीं बनता मसला, तो फिर आप उसके लिए डिफरेंट हेडिंग दे दें, बैकग्राउंड लिख दें, आप न्यू पॉलिसी उसकी हेडिंग दे दें, प्रीवियस पॉलिसी की हेडिंग दे दें, कंपैरिजन की हेडिंग दे दें, आपका जो दिल चाहे आप हेडिंग दे सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने एक तरीका बता दिया। अच्छा, अब आपको अगर आप ये तरीका आपको फॉलो भी किया और आपका आ भी गया तो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अगर आपको याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ कि एक पर्सन को यहाँ कंपनी से निकाल दिया गया था, और वहां पर ब्रांच मैनेजर ने उसको एक्सप्लेनेशन दिए बगैर निकाल दिया, और उसकी वजह से लोग इनसिक्योर हो गए थे, और आपका जो लेबर यूनियन का हेड था उससे भी बात नहीं करने दी। तो आपने जाके इस मसले को चेक किया और उसके ऊपर आपने रिपोर्ट जो है वो पेश की है। अब अगर दूसरी रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर जी आपको नजर आ रही है डिक्लाइन इन बिजनेस। अब आप अगर गौर करेंगे ना तो ये स्पेसिमेन आपको मिलेंगे, तो आपका जो ईमान है ना वो डोलना नहीं चाहिए, यानी आपने जो आपका ईमान जो है वो फिक्स है। मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया, उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर ये जो बहुत पुरानी कोई रिपोर्ट्स है लेकिन इसका कंटेंट अच्छा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पे लिखा है शॉर्ट रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन बिजनेस। अब आप कहेंगे मिस डिक्लाइन का डी कैपिटल तो कोई नहीं है, बिजनेस का बड़ा नहीं है। भाई आप करोगे ना, इन्होंने नहीं किया तो ना करें, ठीक है, और ना ही स्लैशेस वगैरह लगा के लिखना। एक चीज जो पसंद है, डिक्लाइन इन बिजनेस या डिक्लाइन इन सेल, जो लिखना है एक चीज लिखना, उसको आपने क्या नहीं करना, आपने ऑप्शन नहीं देनी एग्जामिनर को। अब साफ जाहिर हो रहा है इस रिपोर्ट में कंपनी की सेल गिर गई, आपने इसके ऊपर क्या लिखना है? आपका है रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन, आप फॉर्मेट पे मैं कोई बात नहीं करी, मैं स्टार्ट करने लगी इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन को अंडरलाइन नहीं करना, मैंने पहले भी बताया था, आपने सिर्फ हेडिंग देनी। इंट्रोडक्शन में दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड इन रिस्पांस टू योर लेटर ऑफ सितंबर 3 2011। बिल्कुल आप ये स्टार्ट लिख सकते हो, डेट चेंज कर देना। In which I was required to find out causes of decline in sale of shampoos and cosmetic products. The report also includes the findings and recommendation regarding the present issue. ये सारा कुछ आप क्रैम कर लो और इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो इसी तरह। उसके बाद आपके पास अगला
जो टॉपिक है यानी हेडिंग है वो है मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर। आपने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की, आप उसको ABCD नाम दे दें, फाइंडिंग्स के ABCD नाम दे दें, 1 2 3 कर दें, रोमन्स में लिख लें, जो 1 2 3 होता है, आई के साथ आई 1 तो 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 लिखते हैं जैसे आपको पता है आई एंड बी की शक्ल में, आप वो भी लिख सकते हो। अब आपने क्या पता कर रहे हो, डिक्लाइन हुई है सेल में, और आप बेचते क्या है, शैम्पूज एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट की, आई अकॉर्डिंगली कंडक्टेड थरा सर्वे एंड टूअर्ड डिफरेंट सिटीज। आपने इसके ऊपर, ये भी आपको लाइन याद रह सकती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका दिल चाहे। आई विजिटेड द शॉपकीपर्स, आपने डिफरेंट जगहों पे विजिट किया, इंटरव्यूड द कस्टमर्स, अगर वहां पे लोग खरीदने किसी मॉल में आप गए हुए हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, आपने पूछा कि ये प्रोडक्ट कैसी हैं, आप ये खरीदते हैं, ऐसे ही शो नहीं किया हम कहाँ से आए हैं, तो आपने वहां पे किया, इंटरव्यू किया। या आपके दिल में कुछ और है तो आप कुछ और कर ले, ठीक है, आपकी मेथोडोलॉजी पे कोई इतराज नहीं करने वाला, आपका जो दिल चाहे आपने रिसर्च के लिए उस पर काम किया। उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड अ ब्रीफ रिपोर्ट विच इज गिवन बिलो। आपने देखा है कि इस वाली रिपोर्ट की हर जो हेडिंग है उसके नीचे इंट्रोडक्टरी लाइन डिफरेंट है, जो पिछली रिपोर्ट है उस पर डिफरेंट थी। आपको जो पसंद है आप उसको याद कर लें, आपको जो पसंद है वो याद कर लें। अब यहाँ पर टिल मार्च 2010 sale of our product was quite satisfactory and according to the target. In April 2010, new companies stepped in the market. This led to a severe competition. ये बात तो फैक्ट है, जब भी आपके कंपेटिटर आएंगे, सेम चीजें बेचेंगे, तो क्या होगा, आपको सिवियर कंपटीशन का मुकाबला। अब आप कैसे उसको विथस्टैंड करेंगे, आप कैसे कैसे बेहतर कर पाएंगे, तो आपने इसके मुताबिक इसको करना है। They introduced their new products which were attractively packed. अब जो नए कंपेटिटर हैं उनकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह पैक थी। एज अ रिजल्ट न्यू प्रोडक्ट्स वन फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक में पॉपुलैरिटी हो गई इनकी, एंड स्टार्टेड रिप्लेसिंग आवर शैम्पूज एंड अदर प्रोडक्ट्स, और हमारी जगह उन्होंने दूसरी चीजों को क्या करना शुरू कर दिया, प्रेफर करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, आप मार्केट जाते हैं, अगर आपको एक पैकिंग अच्छी नजर आती है, आपको स्टाइल अच्छा नजर आता है, तो आप बिल्कुल कहेंगे ये लेते हैं, या उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही है, लोग जो है वो उसको यानी यानी ज्यादा मार्केट कर रहे हैं, तब भी हो सकता है। फिर आगे लिखा है दे इंट्रोड्यूस चीपर प्रोडक्ट्स। अब ये मर्जी है आपकी लिखने की, आप लिखे, आप इसकी जगह वर्ड इकोनॉमिकल कर दें कि दे जो है इंट्रोड्यूस इकोनॉमिकल, ज्यादा इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स को उन्होंने किया है। द न्यू कंपनीज इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स विद ट्रिमेंडस पब्लिसिटी कैंपेन। अब आपको एक चीज बता दूं, जब हम मार्केटिंग करते हैं ना, तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे कहते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कि हम बहुत शदीद मार्केटिंग करते हैं। अब आपने देखा है कि जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको टीवी पे ऐड आते हैं, या आप रास्ते में जा रहे हो तो आपको देखते हो कि एलसीडी जो है लगी हुई, उसके अंदर आपको एड्स जो है वो चलती हुई दिखाई देती है, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, आपके बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, अखबार में ऐड आती है, मैगजीन में आती है। या फिर एक और चीज होती है जो मार्केटिंग वाले करते हैं, वो होती है किसी न किसी सेलिब्रिटी को वो इन्वॉल्व करते हैं, जिससे आप कहते हो कि ये वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो आपका, आप ये क्या है, ये ज्यादा मार्केटिंग हो रही है ना, लोग आप देखते हैं कि अपना फेवरेट प्लेयर है, वो चीज कहता है कि मैंने ये शैम्पू यूज कर रहा हूँ, तो वो लोग उसके पीछे भागेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही लोग जो है वो लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी कुछ है, या आजकल जितना भी आप देखते हो ऑनलाइन कैंपेन चलती है, ये भी इसका जिक्र किया जा सकता है। They advertise their products through banner, signboards, टीवी, कमर्शियल, प्रिंट मीडिया, और ये बहुत पुरानी चुकी खबर है, आप रिपोर्ट है, आप उसे कहेंगे जी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और तो और आपको मैं फिर आपके नॉलेज के लिए, आपका एक चैप्टर है यानी आपके सिलेबस में है, जो आपने लाजमी पढ़ना है, और मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि जो आई कैप की बुक है सीए की, उसका लास्ट चैप्टर है, आपके पास बुक मौजूद है वो, तो आपको मैंने पीडीएफ में भेजी भी है, उसका चैप्टर वो आपने रीड जरूर कर लेना है। उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डिटेल लिखी है और सही लिखी है। अब उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक वेबसाइट बनाई,
आप वेबसाइट पे इन्वेस्ट करती है कंपनी, बहुत पैसा लगाती है, आपकी वेबसाइट है, आपने यूनिक नाम लिया है, ठीक है, आप उसको जो है उससे रजिस्टर्ड होते हो, तो आपकी वेबसाइट है, डोमेन नेम जिसे कहते हैं, तो आपने उसका डोमेन नेम जो यूनिक लिया है, बड़े पैसे दे दिए आपने, और आपकी जो वेबसाइट है उसको बहुत ही ज्यादा कह लें कि पब्लिसिटी है, बहुत ज्यादा लाइक्स मिली। इसके अलावा कंपनीज ना सिर्फ वेबसाइट पे इन्वेस्ट करती हैं, वेबसाइट के अंदर वेब ब्लॉग, यानी इसे ब्लॉगिंग कहते हैं, उस पे इन्वेस्ट करती हैं कंपनियां। अब ब्लॉगिंग क्या करती है, अब मैं आपको मिसाल देती हूँ। पेप्सी वाले हैं या कोक वाले हैं, उनकी एक वेबसाइट है, साथ ही उनके वेबसाइट पे ब्लॉग भी है। अब ब्लॉग में वो जितना भी अपनी अपडेट्स हैं वो देते हैं, उसके अंदर अपने कस्टमर के कोई क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देते हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग तरीके हैं, या हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कब ऑफ लगेगा, यानी उसकी प्रमोशन कब होगी, उसके ऊपर वो आपको बताते हैं। तो लोग विजिट करते हैं उनको, रिटेलर्स विजिट करते हैं, तो उनकी पब्लिसिटी बहुत बढ़ जाती है। मैं आपको सारी बातें इसलिए बता रही हूँ, रिपोर्ट के अंदर आप इसमें से जो दिल चाहे बात लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है टीवी कमर्शियल, प्रिंट मीडिया के जरिए आपने एडवर्टाइज किया, सोशल मीडिया के जरिए किया, वेबसाइट्स लगाई, वेब ब्लॉग किए। बिसाइड्स इसके अलावा देयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विजिटेड शॉप्स एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर टू सप्लाइंग सैंपल्स टू पीपल। उन्होंने लोगों के पास गए, और आप कह सकते हो आजकल जैसे जमाना है, मॉल्स के ऊपर उन्होंने अपनी जो है कैंपेन चलाई हुई है, लोगों को फ्री जो है वो हैम्पर्स दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, आप ये कह सकते हो, जो कि आपकी औकात इसलिए नहीं है कि आपकी कंपनी छोटी है, आप इतना पैसा नहीं लगा सकते। अब आप सोचिए आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कंक्लूजन, द प्रिंसिपल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, ये भी लाइन आप याद कर लोगे, were that many new companies stepped in the market through tremendous publicity campaigns. These companies introduced low price products with attractive packing. आपकी पैकिंग अट्रैक्टिव है, आप नए तरीके से चीजों को, और आपने देखा है ना कि जैसे मैं आपको एक मिसाल अभी देती हूँ, आप इसलिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप थोड़ी सी ना अपनी ऑब्जर्वेशन दुनिया में थोड़ी ज्यादा रखा करो। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे बिल्कुल यंग बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, वो कहते होंगे कि हमें क्या लगे इन चीजों से, लेकिन अगर आप एक नोटिस करो, घर में आपने कभी अगर ग्रोसरी नहीं करने जाते, यानी घर की सौदा नहीं खरीदने जाते, लेकिन घर में चीजें पड़ी आपको नजर तो आती हैं। आपने देखा है कि पहले आपके घर में अगर जूसर ब्लेंडर एक था, या कोई ग्राइंडिंग की मशीन थी, अब नई तरीके की आ गई है, आप देखिए वो कैसे चलती है। तो आपने नई उसकी जो वर्किंग है, नया स्टाइल है उसका, और आपके लिए ज्यादा इजी काम हो गया है। फिर आप एक और चीज नोट करते हो, आम चीजें जैसे मैं नोटिस भी करती हूँ इस चीज को, आप लेकर आते हैं घर से, आपने घी या आप ऑयल यूज करते हैं, आप उसके पाउच खोलते हैं, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, उसके पाउच को ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए उसके ऊपर लिड आता है, ढकना लगा होता है। इसी तरह आप जितनी भी चीजें और लेते हो, आपके घर में चिकन स्प्रेड है, मायोनीज आप खाते हो, या आप कोई और आपकी जो है डिफरेंट डिप्स आप खरीदते हो, तो उनकी पैकिंग जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गई है। तो ये सारी चीजें कंपनीज तब करती हैं जबकि उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी होती है, उनकी मशीनें नई होती हैं, उनकी पैकिंग सही होती है। तो आप ये चीजें देखें, दिमाग में रखें, जब आपने रिपोर्ट लिखनी हो, लेटर लिखना हो, तो इस तरह की चीजें आपके काम आती हैं, आपके इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए। इसके बाद रिकमेंडेशन है, इन व्यू ऑफ द अबव फाइंडिंग आई रिकमेंड दैट। ये लाइन मैंने याद कर ली, मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स में ये काम आएगी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे लिखता है द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड शैम्पूज फॉर एवरी काइंड ऑफ हेयर बी डेवलप्ड। अब आपने पहले तो एक ही नुस्खा लगा रखा था, अब आप शैम्पूज को चेंज करें। आप कहते हैं कि डेंड्रफ हेयर हैं उनके लिए, आपके जो बाल हैं डाई करते हो उनके लिए शैम्पू अलग होता है, मेन के लिए अलग है, विमेन के लिए अलग है, एंड ब्ला ब्ला। आपके कोई प्रॉब्लम है बालों में, उसके लिए मेडिकेटेड शैम्पू है। तो आपने ये चीजें डेवलप की, जो भी आपकी चीजें आपने इस तरह डेवलप की। इसके बाद गिफ्ट एंड प्राइस स्कीम, जैसे आपने गिफ्ट हैम्पर्स दिए, प्ले अ वाइटल रोल इन बूस्टिंग अप द सेल ऑफ प्रोडक्ट। सच स्कीम मे बी लॉन्च विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट का इफेक्ट का मतलब है अभी के अभी, टू अट्रैक्ट द पीपल। आप लोगों के लिए, जैसे आप टीवी पे ऐड देते हैं कि हमारे इस शैम्पू 2 बॉटल्स खरीदने पर आपको तीसरी ये चीज
फ्री मिलेगी, या आपको बॉटल खरीदने पर इतने साशे फ्री मिलेंगे। एक मिसाल दे रही हूँ आपको। तो ये नहीं मैं कह रही आपने लिखना है, आपको नहीं लिखना, ये किसने कहा है, मैं तो सिर्फ आपके ज़हन में एक आइडिया लेके आ रही हूँ जिसकी वजह से आप इस चीज को सही तौर पे लिख पाएंगे। ठीक है। इसके बाद है, इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज आवर प्रोडक्ट द सर्विस ऑफ पब्लिसिटी एक्सपर्ट शुड बी एंगेज्ड। जो लोग मार्केटिंग करते हैं, जो पब्लिसिटी करते हैं, एक्सपर्ट लोगों को एंगेज किया जाए। हु विल सजेस्ट इफेक्टिव पब्लिसिटी डिवाइसेस, वो आपको अच्छे पब्लिसिटी के तरीके बताएंगे। डिवाइसेस मीन अच्छे तरीके बताएंगे, आपकी पब्लिसिटी जो है इफेक्टिव हो जाएगी। अब आपने पब्लिसिटी के लिए, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक ब्रांड बड़ा चलता है, उसके साथ आप अपने प्रोडक्ट को साथ ही कोई छोटा सा पैक आप लगा दें, आप उसके साथ खरीदें, वो पैक फ्री है मसलन, या उस पैक जो है उसकी जो कीमत बहुत कम है अगर उसके साथ आप खरीदते, तो इस तरह की चीजें। या जो प्रोडक्ट बहुत बिकती है किसी और ब्रांड की, उसके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि आप लिखते हैं कि जी अगर आपने दो खरीदे तो उसके साथ आपको ये चीज मिलेगी। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, मेरे घर के पास एक तो आउटलेट है, वो केएनएन का मटेरियल यानी चीजें रखते हैं। उन्होंने क्या किया हुआ, केएनएन के साथ उनकी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है कि केएनएन वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारा आप लार्ज पैक खरीदेंगे ना, इकोनॉमी या फैमिली पैक खरीदेंगे, उसके साथ डॉन की एक ब्रेड फ्री मिलती है। यानी डॉन की ब्रेड उसके साथ बंधी भी तो नहीं होती ना, लाजमी बात है, वो तो फ्रीजर में पड़ा होता है, और डॉन की ब्रेड रोज की रोज नहीं आती है। तो इस तरह की कोई, आपको मैं बता रही हूँ, कोई ना कोई पब्लिसिटी आप करते हो, ये सिर्फ आइडिया दे रही है। उसके बाद है, द पैकिंग डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट शुड आल्सो बी चेंज एंड दीज शुड बी अट्रैक्टिव। पैक्ड होने चाहिए, आपका जो पैकिंग मटेरियल है वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए, ये आपका इसमें है। फिर है, our product should be priced at a relatively low and competitive level to complete the new compete the, ये compete है वर्ड गलत लिखा गया है, compete the new products। आपने नई प्रोडक्ट को compete करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना प्राइस competitive रखनी है। If you want to have further discussion on any point, I may be called at any time, आगे convenient to you। ये वाली भी आखिरी लाइन को भी हमने क्रैम कर लिया, रट्टा लगा लिया, हमने ये भी लिख डाली है। इस तरह आपकी रिपोर्ट बेहतरीन रिपोर्ट हो जाएगी। अब आपको मैंने इस वक्त, आज हमने एक कल जो लास्ट टाइम की रिपोर्ट थी वो आपको मैंने बताई, एक आज हमने सेल डिक्लाइन पे रिपोर्ट देखी है, और एक रिपोर्ट आपको लास्ट जो मैं भी दिखाने जा रही हूँ उसका मैं जरा आपको आइडिया दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये एक मेमोरेंडम रिपोर्ट है, जो फॉर्मेट मैंने बताया वो करोगे फॉलो। ये उन्होंने दिया है अपनी मर्जी से, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट, देखो ये चार चीजें तो लाजमी है ना, ये मैंने बता दिया। मिस्टर XYZ रीजनल मैनेजर कस्टमर सर्विस थे आप फ्रॉम ABC, अपने नाम के साथ मिस्टर नहीं लगाना। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स है, आपने फरवरी 2008 की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट सुल्तान अहमद, कोई पर्सन है। अब मैं ये रिपोर्ट पढ़ने नहीं लगी, मैं आपको इसका नटशेल बताती हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर ही जब आपके पास ये रिपोर्ट आ जाएगी तो आप देखना मेथोडोलॉजी अंदर ही घुसा दी है उसने, आप इसके लिए मेथोडोलॉजी अलग कर दो। होता क्या है, हुआ ये कि मिस्टर सुल्तान अहमद बड़े पुराने वहां पे कस्टमर सर्विस जो डिपार्टमेंट में है, वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को डील करते हैं। उनके बारे में वो आई चुंदरीगर, कराची के लोग खुश हो जाएंगे, उनकी जो है वहां पे उनकी ब्रांच है, तो उन्होंने वहां पे जाके कहा कि मिस्टर सुल्तान अहमद के खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, कस्टमर कह रही है कि वो बहुत रूड बिहेव करता है, आ, लोगों को लाइन लगा के खड़ा रहने देता है, काम नहीं वहां पे हो रहा। तो आपको कहा जाके जरा चेक करें। आप वहां पर जाते हो, आपने उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम के ऊपर रिपोर्ट लिखी है, आपने वहां जाके कैसे मेथड अडॉप्ट किया, आप इसके लिए मेथड लिखोगे। आपने विजिट किया, आपने इंस्पेक्शन वहां पे की, आपने मिस्टर सुल्तान अहमद का इंटरव्यू किया, आप वर्किंग आवर्स के बाद आपने वहां पे एरिया जो है जगह उसका यानी सारा सेटअप चेक किया, आपने पुराने अकाउंट्स चेक किए हैं, आपने वहां के कस्टमर से बात की है। तो सारी चीजें जब आपने कर ली तो आपकी फाइंडिंग्स क्या आई, इसका मतलब है कि मेथोडोलॉजी का यहाँ पर पार्ट निकल गया, यानी आपने देना है, आपने जरूर देना है, क्योंकि इस वाली रिपोर्ट में मेथोडोलॉजी बनती है। फाइंडिंग्स में अब आप एक प्लीज नोट करो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स दो,
टाइम नहीं होगा। हाँ, आप अपनी जिंदगी में जब कोई रिपोर्ट लिख रहे होंगे तो आप जरूर मेन हेडिंग को सब हेडिंग लगा दो, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होगा। ये उस वक्त रिपोर्ट लिखी जाती है, 15-20 नंबर की रिपोर्ट है, 3 घंटे का आपका पेपर है, रिटर्न पेपर कर रहे हो, तो वहां पे इस तरह आप रिपोर्ट अफोर्ड कर सकते हो लिखना। यहाँ पर आपको क्या मिला? फाइंडिंग्स में उसने कहा कि मैंने सारा सर्वे किया तो पता चला कि वर्कलोड उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, स्टाफ मोरल डाउन है, क्योंकि वहां पर लोगों को कई दिनों से, कई महीनों से प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही थी और लोग वहां से छोड़ के जा चुके हैं, जिसकी वजह से बाकी जो स्टाफ रह गया है उसका मोरल डाउन है। इसलिए जिसका मोरल डाउन होगा वो कैसे खुशी से काम कर सकता है, उसको पैसे नहीं पूरे मिल रहे, ये आपने बताया। फिर आपने कहा वर्क एनवायरनमेंट वहां पर ऐसे है कि कंप्यूटर्स पूरे नहीं है, जो कंप्यूटर एक काम कर रहा है या दो काम कर रहे हैं, बाकी कंप्यूटर जो है वो काम नहीं चुके कर रहे, लोगों की लाइनें लग जाती हैं। और ये भी कह सकते हो कि वहां प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना इसको, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। तो आपने इसकी जो है पूरी आपने वर्क एनवायरनमेंट की बात की, और उसके बाद एक और चीज आपने यहाँ पे की कि आप जो है यानी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है मैस, और इंक्रीमेंट आप जो है वो नहीं मिले लोगों को, जो मिलने चाहिए थे वो हो गया, ये आपने बताया। और इसके बाद आपने एम्प्लॉयज टर्नओवर बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के चले गए हैं, टर्नओवर का मतलब है छोड़कर चले जाना। कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पर जो पर्सन जिसकी शिकायत आई है उसका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वो बहुत ईमानदार आदमी है। आपने रिकमेंडेशन दी है वर्कलोड के लिए लोगों को हायर और किया जाए, उनके पुराने जो रह गए हैं पेएबल ड्यूज हैं उनको पे किया जाए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, और फिर उनके इंक्रीमेंट लगाए जाए, लोगों को प्रॉपर अरेंजमेंट बैठने की जाए, एंड इस तरह की चीजें। आखिर में समरी, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं लिख सकते इतनी बड़ी समरी, तो ये रिपोर्ट जो है आपकी, आप समझ लें कि दिस इज डन। ये आपने सारी रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में अब आपकी फाइंडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में बता सकते हो, और सब हेडिंग्स देने की यहाँ पे जरूरत नहीं। अब लास्ट जो बात, अगेन ये रिपोर्ट मैं पढ़ूंगी नहीं, ये हर्टा मर्फी की बुक जो आपको रिकमेंडेड बुक है उसके अंदर से एक रिपोर्ट मैंने ली है, मेमो रिपोर्ट है। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब आप और करें कि इसके अंदर ना फाइंडिंग्स है ना रिकमेंडेशंस है, कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट असल में क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर एक टेलर की पोजीशन है, जैसे कैशियर्स होते हैं, उसकी पोजीशन के लिए एक बंदा जॉब छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह आपने नई हायरिंग करनी है। आपने लोगों की एप्लीकेशंस और उनके साथ टेस्ट उनके लिए, और उनका मैथ चेक किया, कैलकुलेशन चेक की, और उनके पुराने रिकॉर्ड चेक किए, पुरानी कितनी जॉब करके आए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, उसके करने पर आपने एक रिपोर्ट बनाई है, और ये रिपोर्ट बिल्कुल अनोखी रिपोर्ट है। इसकी हेडिंग्स क्यों फर्क है, क्योंकि उसका नेचर ऑफ टास्क फर्क है। टास्क में आपने हायरिंग के ऊपर कि जी मेरे लिहाज से ये 3 लोग बेस्ट हैं, आप इसमें से एक बंदा रख ले। मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी, मैं एचआर का बंदा हूं, मैंने इस पे काम किया, और मैंने अपना सारा एनालिसिस एक रिपोर्ट की शक्ल में आपको पेश कर दिया। उसके लिए मैंने किस तरह उनकी चेकिंग की, मेरी पहली जो क्राइटेरिया था लोगों को चेक करने का, उनको इवेलुएट करने का, वो था प्रोबेबल परमानेंसी। अब आपको इसीलिए मैंने कहा था शुरू में, बहुत सारे लोग कहते हैं जी स्टीफन जो कोर्टलैंड बवी की किताब आपको लगी हुई है, या आपकी किताब आपके जो सिलेबस में शो की हो रही है हटा मफी की लगी हुई है, ये किताब आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते, हर बंदे की बस की बात नहीं है, अनलेस आपका बहुत स्ट्रांग अंग्रेजी पढ़ने का बैकग्राउंड है। इसीलिए आपको मुख्तलिफ जगहों से पढ़ाया जाता है ताकि आप पेपर के लिए तैयारी अच्छी कर सके। तो यहाँ पर प्रोबेबल परमानेंसी, आपने परमानेंसी चेक की कि भाई कौन कौन बंदा आपके पास ज्यादा काम कर सकता है, उसके लिए 3 लोग आपको नजर आ रहे हैं कॉलम के ऊपर, एक हेलन ट्रू है, जेम्स मेस है, एंड बेथ एस्टर है। ये 3 लोगों को आपने सिलेक्ट किया, उनका एक्सपीरियंस इधर क्राइटेरियन लिखा है, आपने कॉलम बनाया हुआ है, उसका प्रीवियस जॉब, हेल्थ अटेंडेंस रिकॉर्ड,
ये सारा कुछ आपने गुड फेयर करके चेक किया, कितने साल आपने काम किया है। उसके बाद एजुकेशन एंड स्किल्स चेक की, किसकी कितनी एजुकेशन है, कितनी उसको मैथ स्किल्स है, कितनी टाइपिंग स्किल्स है, आपने ये चेक की। फिर आपने तीसरी और लास्ट चीज चेक की, उसकी पर्सनल ट्रेड्स। पर्सनल क्वालिफिकेशन का मतलब है उसकी ट्रेड्स, उसकी क्वालिटीज। मसलन वो पंक्चुअल है, उसकी अपेयरेंस कैसी है, ये सारा कुछ करके आखिर में आपने कह दिया मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि ये बंदा इस तरह काम कर रहा है, दूसरा बंदा इस तरह कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, और आप अपनी मर्जी से इस रिपोर्ट में से कोई भी बंदा हायर कर लें। लेकिन मेरे लिहाज से जो मिस ट्रू है, जो हेलन ट्रू, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। तो ये रिपोर्ट इस तरह से रिपोर्ट है। अब आप ये सोचेंगे कि जी आपको रिपोर्ट, अभी मैं जो आपको नोट्स वगैरह दूंगी उसमें, अब जो कि टाइम इतना आज नहीं बचा, कल मैं आपको इसके सिर्फ आपको जो इसका आपके लिए नोट्स तैयार मैंने किए हैं उसमें से आपको चीजें सिखा दूंगी कैसे पढ़नी है, आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और किस चीज को मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। टाइम लगे तो एक दफा जिंदगी में पढ़ लीजिएगा उसको भी, बाकी जो मैंने आपको दिया वो आपको पढ़ लेना है, जिसमें से आपको एमसीक्यूज आएंगे। और आपको नोट्स के साथ एंड में ये वाले नोट्स हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेंगे वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। पीडीएफ वाले भी काफी हद तक जो आईसीएमई की बुक है उसकी कॉपी है, वो मैंने पीडीएफ करके उसके अंदर स्कैन करके रखी हुई है। उसमें भी जितनी रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे कंटेंट के लिए पढ़ लेना, लेकिन फॉर्मेट वो यूज करना है जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया। और आज मैंने आपको पहली 2 रिपोर्ट सिखाई, याद रहेगा आपको? मैंने आपको जो पहली आज 2 रिपोर्ट्स दी हैं उसका फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, ये वाला, यानी उसका कंटेंट का स्टाइल, लेकिन फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिया है। ये तरीका आपने अडॉप्ट करना है लिखने का, और फॉर्मेट वो जो आपको मैंने स्लाइड पे दिखाया। ये आपको मेरे ख्याल है बात क्लियर हो चुकी है। और ये मेमो रिपोर्ट है जिसमें कि सब हेडिंग्स हैं, ये आप ना करना क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ गई? तो ये आपका जो है तकरीबन आपने ये समझ लें कि सारा हमने कर लिया है। और मैं आपको ये सारी जो आपको नजर आ रही है ये कट एंड पेस्ट मटेरियल है आपकी आईसीएमए की जो बुक है उसके अंदर से, लेकिन यहाँ पर कहीं भी उसने हेडिंग नहीं दी हुई। आप अपनी मर्जी से प्लीज हेडिंग जरूर दे देना, हेडिंग के बगैर आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं कंसिडर होगी। ऐसे ही खाली आपने अगर बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग कर दी, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो कि आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, तो आप इसको प्लीज पढ़ लेना। अभी भी नोट करके रख लो मेरी बातें, ताकि जब आपको नोट्स इकट्ठे, ये जाहिर बात है ये मिल जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको मैंने करवानी है अभी। ये खैर मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं आपको पीडीएफ ये सारी शेयर कर देती हूँ। इसके एंड में कुछ मेमोरेंडम के ऊपर नोट्स हैं, आपका टाइम अगर इस वीक में लग गया तो मैं आपको बता दूंगी, वरना फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक आपको इसके ऊपर गाइड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपके पास, आपको मैं अभी दे देती हूँ, आपको मैं स्लाइड्स भी भेज देती हूँ आज ही। और जो नोट्स हैं वो जो उसके ऊपर थोड़ी सी चीजें आपको समझानी है, वो मैं कल आपको, जिसमें टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आ जाएंगी वो याद आपने करनी होंगी, वो मैं आपको कल भेज दूंगी। ये मैं आपको आज ही भेज देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। आपके पास 7 मिनट्स रह गए हैं, मैं आपके सवाल एक आध अगर कोई है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं जी मैम अगर क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं तो पेपर्स भी ऑनलाइन ही होंगे? मैनेजमेंट को पूछिए, मुझे नहीं मालूम, ये बात आपको मैनेजमेंट बता सकती है। काइंडली बुक का नाम बता दें। आपको मैं बुक का नाम नहीं अभी बता चुकी हूँ, एक हटा मफी की बुक है जो आपके सिलेबस की आउटलाइन में आपकी वेबसाइट पे पड़ी है, दोनों बुक्स के नाम। दूसरी बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल चुकी हैं, अगर आपके पास नहीं है तो सीआर को प्लीज कांटेक्ट करें, वो आपको दे देंगे। इसके बाद रिदा फर्स्ट वाला फॉर्मेट ही यूज कर सकते हैं मेमो रिपोर्ट के लिए भी? नहीं नहीं, उसमें मेमो का मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको मेमो का भी सिखा दिया, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है अब। और जो फर्स्ट वाला है वो जनरल यूज करते हो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा तो आप वो यूज कर लेना। रिदा आप पूछ रही हैं फिर से, मैम क्या ये हेडिंग्स भी देंगे हम लोग? बिल्कुल हेडिंग्स दोगे ना अगर, जो मैंने आपको बार बार यही बात कही है, तो मार्क्स आएंगे। और अगर हेडिंग्स ये वाली जो सूटेबल नहीं हुई तो मैंने इसीलिए आपको कुछ और हेडिंग्स भी दिखा दी कि जिसपे आप बैकग्राउंड लिख देंगे, करंट एनालिसिस लिख दो, आप लिखते सर्वे की रिपोर्ट, सर्वे स्टैटिस्टिक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप कोई भी हेडिंग दे दोगे अदर देन जो मैंने आपको सिखाई है, आपका चलेगा। ठीक हो गया? तो अमानत अली, आपको मेरे ख्याल है किताब की समझ आ गई है।
कि आपको कौन सी किताब है, और दूसरी आपकी आईसीएमए की एक बुक है, आप ले सकते हैं, आपका दिल चाहे हार्ड कॉपी। मैंने उस तरह ही की बुक, कैपलन की बुक आपको पीडीएफ की भी है, मेल की यानी आपको व्हाट्सएप की भी है, एक आपको सीए की बुक व्हाट्सएप कर दी भी है, और आपको 1000 BC क्वेश्चंस व्हाट्सएप किए हुए हैं। वो प्लीज सारी चीजें यू मेक श्योर यू कांटेक्ट समबडी जो आपका जो सीआर है वो आपको बता देंगे। ठीक हो गया? और अगर फिर भी आपको अमानत अली कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बता देना कि आपको सीआर का नहीं पता या किसी और का नहीं पता, तो मैं आपको कल इसके बारे में बता दूंगी। तो अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीजें शेयर करने लगी हूँ। और बस जी, आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, रिपोर्ट अभी कंटिन्यू करेंगी, थोड़ा सा गाइड करूंगी और फिर लॉन्ग रिपोर्ट के ऊपर कल हम बात करेंगे। अगर टाइम बच जाता है लॉन्ग रिपोर्ट के ऊपर, तो लॉन्ग रिपोर्ट आपको बनानी बिल्कुल नहीं आएगी, सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक हो गया? तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।